fashionistas of football, and we would like to talk. We want to play football as well, and we play football as well. So that is how it is. एंड एक हॉनरेबल मेंशन करना चाहता हूँ, मेरे को एक गिफ्ट मिला है दैट वी रीच्ड 300 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम समवन स्पेशल, एंड इट्स अ डिसेंट एनफ प्लैक, आर्सेनल प्लैक है ये, और काफ़ी अच्छा प्लैक है. थैंक्स फॉर गिफ्टिंग. I have also a Hazard jersey now in the उसको भी मिल background. गया है. तो आई थिंक हम लोग जब ग्रो हो ही रहे हैं तो वी विल गेट डिसेंट एनफ गिफ्ट्स फ्रॉम फैंस भी मिलेंगे कभी साथ में, कभी अपने जो क्लोज्ड वंस हैं वो भी देंगे. बट please like and share and subscribe. I think YouTube is recommending us to a lot of people, but people are watching. Thanks for watching us anyway, but प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर पॉडकास्ट एज वेल. आई थिंक हमारा जो कम्युनिटी है वो हम लोग काफ़ी बड़ा कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी एन ओपन कम्युनिटी, तो ताकि सारे ओपिनियंस को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और सारे ओपिनियन को उसको डिबेट की तरह लेके हम लोग भी एक वैलिड पॉइंट बोलेंगे. वी आर नॉट हियर टू अब्यूज ईच अदर, राइट? वी आर नॉट कट ऑफ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग एक बोल रहे हैं. तो रोहन भी इसलिए ही वॉन्ट्स टू कम अगेन, and Nikhil Mehra, that's why he wants to come again. So we don't want to create these viral movements by bashing players, right? Bashing opponents. मतलब ऐसे नहीं कि hate comments डाल के हम लोग ऐसे viral नहीं जाना चाहते हैं. We want to spread love and equality as well. तो यही है हमारा पॉडकास्ट जो है इक्वालिटी इन द सेंस कि सब एक मतलब यू हैव टू बी क्या हैप्पी, राइट, in doing it, and we are happy in doing this, and hopefully you are also happy in listening to our shit. And Paul, anything? Yeah, and viewers, we got our first 1K views video. So Yes. so the Nikhil Mehra video that we did, it crossed around 1100 views it is now. So first time we have seen alphabet in our numbers in our YouTube numbers. So guys, please watch us, please comment us, it will grow us. मतलब ये YouTube algorithm को support करता है. If you like us and if you comment on our video, it will help us in our YouTube algorithm. And please subscribe to the channel if you like the video. वेलकम टू रंगा एंड पॉल टॉक फुटबॉल पॉडकास्ट. एंड पॉडकास्ट अच्छे से चल रहा है एंड पीपल हैव बीन इंटरेक्टिव. थैंक्स फॉर putting your opinions in your comments, and hope you liked our guests. We brought 2 guests, and we also actually the guests are also very much excited to do follow up episodes. So comment कीजिए अगर उनको चाहिए, अगर वापस उनके साथ बात करना है, या निखिल मेहरा या रोहन. या सो अभी तक जो 2 एपिसोड हमने गेस्ट के साथ किया उनका रिस्पांस तो गाइस बहुत ही अच्छा आ रहा है, एंड रोड टू 1K इज ऑन. तो जस्ट बिफोर वी स्टार्ट द एपिसोड, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि प्लीज सब्सक्राइब, इट विल हेल्प अस ग्रो and it will encourage us to do more episodes and more giving football opinions and continue the football chatter in a further way. So Dinesh, let's start. What's the topic today, Dinesh? आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? देयर इज बीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉक्स बिहाइंड द प्री सीजन फुटबॉल, and there are like couple of excited matches which have happened, especially Arsenal Liverpool, Arsenal Man United, and also Chelsea played some decent friendlies with Club America, and all these friendlies have been going around in either in the Americas, or you can say it's going on in Japan or something, where Tottenham are playing and West Ham and Crystal Palace are playing. A lot of transfer rumors, exciting transfer rumors चल रहा है. So it's going to be a fun podcast today as well. और ये एक ही जो रिक्वेस्ट है हमारे से, आई मीन ये जो हमारा कम्युनिटी है वो काफ़ी ओपन कम्युनिटी है, वेयर वी विल लाइक टू हियर ऑपोजिट ओपिनियंस. ये नहीं कि हम लोग का ओपिनियन ही सही है. वी ऑल्सो, दैट्स वाई वी हैव इन्वाइटेड 2 different people with 2 different vast variety of opinions, like the Liverpool team and Liverpool supporter Rohan, and also Nikhil Mehra, who is a staunch Manchester United supporter. So we also invite other people like Chelsea fans, Arsenal fans. अगर तुम्हारे पास कुछ और ओपिनियन है हमारे इसमें कमेंट करना, एंड ऑल्सो please ping us if you want to be in with us for a short of a podcast, or if you're so bored, right, और you want to debate debate any or of opinion कि हजार वर्सेस सलाह, जैसे मैं स्टार्टिंग के पॉडकास्ट चल रहा है, अगर तुम्हें कुछ डिबेट भी करना है तो यू कैन डू इट विद अस. यस. और ये जो ये अगर तुम्हें बहुत स्लो लग रहा है फॉर्मेट, तो ये 2x पे देख सकते हो आराम से, मतलब 2x पे 3x पे देख सकते हो. एवरीवन्स ओपिनियन हर्ड, कि हम लोग ऐसे नहीं है कि हमारे पास 20 मिनट का टाइम है और उसमें से सारे चीज़ स्क्वीज़ करना है और सारे ओपिनियन स्क्वीज़ करना है, ऐसा नहीं है. सो वी ऑल्सो वेलकम दीज थिंग्स टू express your opinions. Take your time and express your opinions. So that is our motto. So Pal, let's dive on to the match. And this has been a hot topic in Twitter right now, right? I think some of the fans, at least majority of the Liverpool Twitter, have now
given the Premier League medal to Liverpool already. What do you think about it, bro? Slot ball is coming. Klopp is dated now. Yeah. Klopp is outdated. Bro, Klopp ball is slop ball has outdated. already come and it has already destroyed. Revolutionized. है, exactly, Revolutionized. revolutionized. जो उनका बिल्डअप स्ट्रक्चर है वो सब उसने इतना मतलब उसने नया क्रिएट किया है कि पीपल आर नाउ माइंड बॉगलिंग कि ये बंदा कहाँ से आया है, कि इस बंदे ने फुटबॉल देखा है या 3-4 मतलब रग्बी देखा है, ये मतलब इसने रेवोल्यूशनाइज किया है, मतलब इसने खुद के रूल्स बना दिए, इसने फॉल्स मतलब 4-2-4 फॉर्मेशन खिला रहा है एंड ही इज लाइक मतलब बहुत 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 खूबी चीज़ कर रहा है. So Pal, as a outsider perspective, I know you hate Arsenal, बट इन द सेंस कि यार लंदन मतलब यार लंदन क्लब हम लोग अच्छा कर रहे हैं उनको ये नहीं चाहिए, बट दीज गाइज दे जस्ट वांट टू डू समथिंग एंड दे विल ब्रांड ब्रो, देमसेल्व्स द जो हीरो हमने ऑफ लास्ट एवरीथिंग. एपिसोड में जैसा बोला था ना कि दे सीक वैलिडेशन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. सो मतलब उनका मोटो वही है कि वैलिडेशंस विदाउट एक्सपेक्टेशंस, कि मतलब हमसे तुम वैलिडेशन हमको पूरा दो, हम थोड़ा सा भी अच्छा कर दे तो. पर लेकिन तुमसे अगर वो थोड़ा सा अच्छा करने के बाद एक्सपेक्टेशंस रख लें कि तुम 2-3 लीग टाइटल जीत जाओ या कुछ बड़ी मेजर ट्रॉफी जीत जाओ, तो नहीं, तुम कैसे कर सकते हो, वो हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमने कभी कुछ किया ही नहीं है, वो एफएसजी पैसे ही नहीं खर्च करता, तो एफएसजी आउट, एफएसजी आउट, एफएसजी आउट, तो फिर एक छोटी सी साइनिंग हुई तो एफएसजी इन. तो मतलब दिस इज द मोस्ट क्या बोलते हैं ओपिनियटेड फैन बेस. मतलब मैं डिल्यूजनल जो बोलता हूँ वो डिल्यूजनल नहीं, सॉरी, जो बहुत डेल्यूशनल तो टॉटनहम फैंस हैं. जो मैं बहुत लाउड बोलता हूँ ना, लाउड हम्म. और इमोशनल जो फैंस है, वो मैं आर्सेनल फैंस को बोलता हूँ. हम्म. लेकिन जो मोस्ट डिल्यूजनल फैंस जो मैं बोलता हूँ ना, और आउटस्पोकन भी जो है, वो लिवरपूल फैंस है. उसमें में कि हल्का सा भी कुछ हो गया ना, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द, उसमें मैं रोहन, मेरे को थोड़ा ठीक लगा कि रोहन ने जो अपने कमेंट दिए थे कि नहीं, कि लिवरपूल का पुल नहीं है भाई इतना अच्छा इन ट्रांसफर्स, जो हम अभी बात कर रहे हैं, अभी तक एक साइन नहीं करी. इट्स ओनली टॉप 6 क्लब इन टॉप 5 यूरोपियन लीग जिसने एक भी साइनिंग नहीं किया है उसमें. मैं तो रोहन का उसमें ओपिनियन सही था कि है ना, कि लिवरपूल डजंट हैव मच पुल, कि लिवरपूल डजंट साइन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उसमें में. तो लेट्स सी कि हाउ स्लॉट बॉल डज. पर अभी जो रूमर्स आ रहे हैं कि स्लॉट नीड्स अ 6 टेक्निकल 6 उसमें में, कि जैसे क्लॉप को चाहिए था ना, मतलब भागने वाला 6, हाँ. हेंडरसन, वाइनाल्डम, फेबिनो थोड़ा टेक्निकल था पर स्टिल ही वाज पीएनपी था उसमें. पर उसको चाहिए अब जॉर्जिनियो, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं. पर ब्रो आई विल नॉट, मैं आर्सेनल को हेट करता हूँ, पर मैं लिवरपूल को थोड़ा ज्यादा ही करता हूँ उसमें मैं, क्योंकि दे हैव टेकन सो मेनी ट्रॉफीज फ्रॉम अस इन द लास्ट 3-4 इयर्स. पर लेकिन वन थिंग आई हैव अंडरस्टूड सिंस द लास्ट सीजन आफ्टर चेल्सी वन एवरी मैच ऑफ द प्री सीजन, कि भाई प्री सीजन और उसके बाद जो हमारा सीजन गया, फिनिश 6 समहाउ वैसा उस, और स्टार्टिंग के 10 मैचेस में हमारे शायद 10-11 ही पॉइंट्स थे उसमें में. तो डोंट एवर ट्रस्ट प्री सीजन, कभी प्री सीजन को ट्रस्ट मत करो, कभी उससे ना एक्साइट हो और ना कभी उससे डिमोटिवेट हो कि हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा. ये प्री सीजन इज ऑल अबाउट कि मतलब हाउ टू प्ले एंड हाउ टू, मतलब न्यू मैनेजर के अंदर तुम कैसा खेल सकते हो. अभी लिवरपूल वाली बात चल रही है कि लिवरपूल ने बीटन आर्सेनल. एक बात देखना कि लिवरपूल के कितने प्लेयर्स यूरोस गए थे और आर्सेनल के कितने प्लेयर्स यूरोस गए थे, प्लस कोपा अमेरिका ऑल्सो, थोड़ा बहुत कोपा अमेरिका भी ऐड कर लो. आर्सेनल का मोस्ट ऑफ द स्क्वाड आर्सेनल की है ना, यूरोस और कोपा अमेरिका गई थी, ओडेगार्ड और बेन वाइट को छोड़ के ये. लेकिन लिवरपूल के तो सबके सब प्लेयर्स यहीं थे. पोर्चुगल पहले ही बाहर हो गई, जो जोटा था उनका, सला गया नहीं, न्यूनेस बहुत पहले बाहर हो गया था उसमें में. वो न्यूनेस इसमें सॉरी, हुआ था. न्यूनेस नहीं गया था, न्यूनेस नहीं, ये दूसरा था उनका, डियास, हाँ. लुइस डियास बहुत पहले बाहर हो गया था. और उनका पांचवा कौन है, गैक्पो भी बहुत पहले बाहर हो गया था. तो उनके प्लेयर्स ने तो रेस्ट अभी तक किया ही, और उनके प्लेयर्स तो रिटर्न भी कर रहे हैं, प्लस उनका मिडफील्ड कहीं गया नहीं बाहर, मैकेलिस्टर को छोड़ के. एंडो सब वहीं पे है अभी भी. उनका बैकलाइन में एक, अगर तुम वैन डाइक को हटा लो तो बैकलाइन भी सेम है. कोनाटे वाज इंजर्ड, तो कोनाटे भी अभी खेल ही रहा है. रॉबर्टसन तो पहले मैच के बाद ही बाहर हो गया था स्कॉटलैंड से. 3-0 के बाद. तो एक बार स्क्वाड तो देख लो भाई, कि आर्सेनल का स्क्वाड तो देख लो कि वो बच्चे खिला रहे हैं आर्सेनल, सारे के सारे बच्चे हैं. और उससे भी सबसे बड़ा बच्चा जो उनका वो है, क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियंस जिसको जो बोलते हैं, जिनचेंको, तो उसने भी तो हगा है. वो तो देख लो, वो तो नहीं खेलेगा, टिम्बर खेलेगा, काला फ्यूरी खेलेगा. तो डोंट गेट सो मच हाइप, लिवरपूल फैंस, डोंट गेट होप सो मच. यू विल बी इन ए रियलिटी चेक नेक्स्ट सीजन, डोंट वरी. I don't want to criticize them in the sense कि मतलब तुम hope जिता सकते हो, but the problem is कि you can hope for a better season. That is what I am also saying, because you are playing with the same crop of players.
तुमने ही बताया था कि क्लॉप अचीव्ड बहुत ज़्यादा, राइट? क्लॉप अचीव विद द सेम क्रॉप ऑफ प्लेयर्स कि उन्होंने बहुत अच्छा साबित किया है कि टॉप फोर एटलीस्ट ही कम्पीटेड टिल 34 गेम्स टिल ही वाज अबाउट, इट वाज अ 3 horse race. So you told that Cop had overachieved in these हम्म things, but you're again playing with the same crop of players, and then now you're saying that you're going to win the league. I mean, look at the Liverpool Twitter. They are. I don't know. I don't know what they need. I think they're actually, Pal. They're they don't want a proper discussion. It's basically they want to have this hate comments piled on, right? हम्म Liverpool are going to win the league. उसके बाद वो tweets अगर मतलब 1000 retweets are being done by the same Liverpool fan base, and उसके comments होते हैं आर्सेनल के जो ब्लू टिक्स वाले होते हैं, आर्सेनल के ब्लू टिक्स, चेल्सी के ब्लू टिक्स, दैट यू आर नॉट गोइंग टू विन एनीथिंग और समथिंग. सो दे बैंक ऑन दीज हेट थिंग्स. अगर इसी ट्वीट को ना तू अगले मतलब जो सीजन के 3-4 मैच के बाद बोलेगा ना, इट डिपेंड्स ऑन वेयर दे आर. They don't know what they're saying. We knew हम्म it, it's just banter, right? So हम्म they have all these outs basically. So so that's why in this podcast we also appreciated Rowan in the sense कि वो बंदा skeptical रहा है कि यार top 4 is an achievement for us, क्योंकि नया तुम्हारे पास वो है और यहाँ पे वेल एस्टैब्लिश टीम्स हैं जो मतलब अच्छे से वो कर रही हैं पहले से. इट्स नॉट लाइक मतलब obviously you are going to win some 5 to 6 matches like how Tottenham did, right? बट Because of the एटलीस्ट new 3 टीम्स तो हैं ही जो मतलब एस्टेब्लिश्ड हैं और दे विल ग्रो ऑन टू देयर लास्ट सीजन. ex- आर्सेनल, सिटी और एस्टन विला. Aston Villa, या and also I think you shouldn't count Tottenham also out, right? Because they showed great potential in between, and of या course they lost all their energy in the last of the season, so that's why they lost. Why are you not counting them? Because they played one of the exciting games initially. Even being an Arsenal fan, कि मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आई एम डिस्क्रेडिटिंग देम. उनका स्टार्ट ऑफ द सीजन अच्छा रहा. आई एम गोइंग टू से द सेम थिंग फॉर यू गाइस. तुम्हारा भी स्टार्ट ऑफ द सीजन अच्छा ही रहेगा क्योंकि तुम्हारा नया कोच आया है भाई. एवरीवन हैज टू गिव 100% टू द नया कोच. या यू हैव टू इम्प्रेस करना पड़ेगा भाई, तुम्हें नया कोच की इम्प्रेस करना पड़ेगा. और प्लस चेल्सी के प्लेयर्स इतने यूरोज भी नहीं खेले हैं, उन्होंने एग्जैक्ट. कोपा खेले हैं. सबके सब तो इंजर्ड थे. रीस जेम्स, हाँ. एनकुकू, लाविया, तो जो नई मालो गुस्टो, तो सब नए प्लेयर्स ही हैं. या एंड मतलब ऑल्सो रेस्टेड प्लेयर्स है, सॉरी, तो नहीं नहीं, रेस्टेड. मतलब व्हाट इज द लेवल ऑफ अपग्रेड यू वांट टू सी फ्रॉम हार्वी एलियट? हार्वी एलियट अगर मेसी बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना. अगर तुम लोग मतलब जो कैरवाल्यो ने जिसने गोल मारा था, क्या वो भी मेसी बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा. या क्रिस्टियानो बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता ना. या डेविड मतलब न्यूनेस आते ही मतलब ही विल बिकम अनदर डिडियर ड्रोग्बा? नहीं बन सकता ना यार. मतलब तुम लोग कितना लेवल उनसे इंक्रीज करवा सकते हो ताकि तुम मतलब इफ यू वांट टू कम्पीट इन चैंपियंस लीग, इफ यू वांट टू विन द प्रीमियर लीग, इन बंदों से जो पहले से खेल रहे हैं. एंड यू हैव ऑलरेडी सेड इट्स नॉट अस. You have said, we said, Klopp has underachieved, right? But what you guys said, especially from Liverpool fan base, कि Klopp has overachieved. Even all the media and everything, कि Klopp is the only जेमी reason. कैरेगर ब्रो, जेमी कैरेगर ने बोला एग्जैक्टली, था. जेमी कैरेगर जो भी मतलब सारे यार मतलब हाँ माइकल ओवन, जेमी हाँ कैरेगर, जो उनके मतलब जो कमेंटेटर्स जो सारे उनके टट्टे हैं, हाँ. सबने उनको बोला कि this team is competing to be in the top and has won the tin cup because it's only because of Jurgen Klopp, right? And then you also said this, and then the second thing कि आर्सेनल मतलब लिवरपूल बीट आर्सेनल इन अ प्री सीजन. चलो ठीक है, दोनों ही बी टीम खिला रहे हो, या आर्सेनल ए टीम भी खिलाए, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ आर्सेनल ए टीम भी खिलाया, और तुम लोगों ने सी डी टीम खिला के, या रिजर्व्स जो मतलब है ही नहीं, मतलब जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ के, अगर तुमने आर्सेनल की ए टीम को भी हरा दिया है, अगर why are you so excited? Because they are not going to play the majority of the matches. मैं बता रहा हूँ तुम लोग इसको ब्रो नहीं खिलाने वाले हो एक कारवालियो बार को. एक बार लिवरपूल की टीम मैं बता देता हूँ, जो उनकी टीम खेली थी, ठीक है. उनका कैलेयर गोलकीपर ठीक है, वो खेलता है, वो बहुत खेलता है. कॉनर ब्रैडली उनका वन ऑफ द टॉप राइट बैक था, क्योंकि ट्रेंट लास्ट सीजन खेला ही नहीं था. क्वांजा को तो वो बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं. खेलेगा ही. हाँ खेलेगा ही वो. उन्होंने बस वेंडा बगे खिला रखा था, उसकी जगह देखो टू प्ले वैन डाइक. Yeah. एक वो मैं मानता हूँ. तो और है ना, लिवरपूल फैंस अभी रॉबर्टसन को खुद गाली दे रहे हैं कि रॉबर्टसन हटाओ, सिमिकास खिलाओ. सिमिकास प्लेट. दे हैव अ मिडफील्ड ऑफ सोबोसलाई, हार्वी एलियट एंड कर्टिस जोन्स. तो ब्रो यही तो मिडफील्ड है ना उनका. हाँ. और इसमें मैकेलिस्टर तो ऐड होना है. Exactly. एंड देयर फ्रंट थ्री वाज मो सलाह, डिएगो जोटा एंड फेबियो करवालियो. तो उसमें तुम बस एक ऐड कर सकते हो, न्यूनेस इंस्टेड ऑफ करवालियो, या फिर डियाज इंस्टेड ऑफ करवालियो. तो ब्रो दे आर जस्ट 2 or 3 प्लेयर्स अवे फ्रॉम देयर फर्स्ट टीम. और तुमने क्या खिलाया? तुमने यू प्लेड मतलब तुम्हारा जो फ्रंट थ्री था वो नेल्सन,
गैब्रियल हीसुस और मार्टिनेली। नहीं यार, तुम्हारी भी टीम अच्छी थी एक्चुअली। अच्छी थे, मतलब स्टार्टिंग में सबने अच्छा खेला था, स्टार्टिंग में सबका टीम अच्छा ही था। एक ओडेगार्ड खेला, दैट्स व्हाट आई हाँ मीन, इट वाज लाइक बेसिकली 6 players, A हाँ players, right? 6 team A players, and हाँ 5 they were normal players, they won't या play. या So it's basically based on the build on the partnership, right? हाँ, पर तुम्हारा कीवी और जिनचेंको तो नहीं खेलेगा वैसा हम्म उसमें में। हम्म और तुम्हारा नेल्सन भी नहीं खिलाओगे तुम। हम्म हाँ, बाकी तो तुम्हारा टीम वही था जो चाहिए, और हेसुस को भी नहीं खिलाओगे और प्रॉब्ली। सलीबा भी नहीं था, बट हाँ मतलब इट डजंट मैटर, राइट? आई मीन दैट्स व्हाट इट्स प्री सीजन इज ऑल अबाउट। प्री सीजन इज ऑल अबाउट कि गेटिंग द प्लेयर्स की थोड़ा बहुत भाग जाए, हाँ। डोंट ओवर एग्जर्ट। भाई मैंने देखा है यार, क्रिस्टियानो को देखा है, मेसी, भाई मैंने क्रिस्टियानो को कितने दिनों से फॉलो किया, मेसी को कितने, भाई वो लोग प्री सीजन खेलते ही नहीं है, हम्म मुश्किल से 1-2 मैच खेलते हैं, वेर दे कम एंड प्ले दिस 60 minutes वाला जो उनका खेल के वो लोग चले जाते हैं, और उसमें से वो लोग ओवर एग्जर्ट करते नहीं है। इसलिए कभी तुमने सुना ही नहीं है कि प्री सीजन में कभी मेसी ने वर्ल्ड ही स्कोर किया है या क्रिस्टियानो ने कभी वर्ल्ड ही स्कोर किया है। ऑफ कोर्स व्हेन दे स्कोर गोल्स, of course it's going to be one of the discussed out topics, हम्म but it's not like they have they have played मतलब exceptional। उनके ऊपर कभी tweets नहीं देखा है मैंने, कभी वो नहीं देखा, हाईलाइट रील नहीं बनता है उनका। ये है कि भाई यू बी सेफ, क्योंकि हम्म उनको पता है कि the season is long ahead, it's going to या be very tough, and it's going to be a huge responsibility for them to play all the games. हाँ। और तूने वो भी नोटिस किया होगा मोस्टली, क्या है ना, दे बिल्ड देयर फिटनेस व्हेन द सीजन स्टार्ट्स। पहले हम्म मैच में, दूसरे मैच में, तीसरे हम्म मैच में थोड़ा थोड़ा खेल के। तो हम्म तू कभी भी ये नहीं देखेगा कि उनके फर्स्ट 3-4 मैचेस में उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया हम्म है। ईडन हजार्ड का मेरे को बेस्ट एग्जांपल याद है, वो पहले 3-4 मैच चलता ही था। मेरे को माइकल कैरिक याद है कि एलेक्स फर्ग्यूसन उसको कभी खिलाते नहीं था, जो निखिल ने भी बोला था अपने हम्म पॉडकास्ट में कि है ना, निखिल वो माइकल कैरिक को कभी खिलाता नहीं था। पार्टी को तुम्हें खिलानी नहीं चाहिए प्री सीजन में भाई, और स्टार्टिंग के 3-4 मैच हम्म की फिटनेस बिल्ड करो इस टाइम। हम्म सिटी सिटी का स्टार्ट हमेशा स्लो क्यों होता है? हाँ हाँ, एग्जैक्टली। सब सिटी को बोलते हैं कि सिटी विल कैच अप, सिटी का स्टार्ट स्लो क्यों होता है? हम्म क्योंकि वो स्टार्टिंग के 4-5 मैचेस है उनका, वो फिटनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, वो हम्म प्री सीजन को वो छुट्टियां ही मानते हैं, और वो हम्म मतलब फिटनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, और ड्यूरिंग द सीजन वो फिटनेस बिल्ड करते हैं। अगर मेरे हिसाब से तो अगर, क्योंकि उनका जो पीक आता है हम्म सिटी का, अगर तू पीक देखेगा, सिटी का पीक हमेशा है ना, इट्स लाइक मतलब मई में आता है, सॉरी मई नहीं, मार्च फेब से उनका पीक स्टार्ट होता है, पीक स्टार्ट फिर होता है। सीजन एंड तक हो जाता है। हाँ। लेकिन तू बाकी टीम्स को देखेगा, उनका फटीग स्टार्ट हो जाता है ब्रो, तो हम्म मार्च से स्टार्ट होता है, उनका फटीग स्टार्ट हो जाता है। हम्म दिसंबर जनवरी में वो थकने लग जाते हैं। हम्म लेकिन सिटी का पीक करता है दिसंबर के बाद, एग्जैक्टली। जनवरी में। तो यू हैव टू बी स्ट्रेटेजिकल, मतलब हम्म उसमें में हम्म कि तुम्हें डिसाइड करना है कि व्हेन यू वांट टू पीक। तो हम्म सिटी के ने और पेप गार्डियोला ने वो फंडा अपना लिया कि व्हेन वी डू वांट हम्म टू पीक। लास्ट में हमें टॉटनहम जैसा नहीं होना है, जैसे लास्ट सीजन टॉटनहम ने किया हम्म था, या फिर आर्सेनल ने एक सीजन पहले किया था, हम्म और जो लिवरपूल ने लास्ट सीजन किया था, हम्म 4-5 मैच पहले की, मतलब दे गेव अप, और उसके बाद हम्म हार गए। तो यू हैव टू बिल्ड देयर सीजन। बट ब्रो, जस्ट लेट्स फोकस ऑन आर्सेनल फर्स्ट। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट डू आर्सेनल नीड नाउ? यू हैव सीन द स्क्वाड, व्हाट डू आर्सेनल नीड टू विन देयर प्रीमियर लीग? क्योंकि अभी तुमने एक साइनिंग किया है, काला फ्यूरी, एंड आई थिंक इज अ गुड साइनिंग। आई हैव सीन हिम प्लेइंग इन यूरोस। हम्म बोलोग्ना में तो किसी ने नहीं देखा है उसे, हम्म और जो बोल रहा है कि बोलोग्ना में दिख रहा है, ही इज लाइंग। ही इज एब्सोल्युटली लाइंग। हम किसी ने भी नहीं देखा बोलोग्ना में उसे। तो आर्सेनल हम लेके यूरोस में हमने देखा है, हम्म जो उसने लास्ट 90 मिनट प्लस मिनट में वो बॉल को कैरी करके आगे आया था, एंड ही हम्म गेव द परफेक्ट वेटेड पास टू दैट असिस्ट, हम्म जो वो जेड कर्लर मारा था उसने। हम्म तो ही इज अ डिसेंट साइनिंग, एंड ही कैन प्ले लेफ्ट बैक आल्सो, ही कैन प्ले लेफ्ट सेंटर बैक आल्सो। तो अब तुम्हें गेब्रियल का भी कवर मिल चुका है। हम्म नाउ यू जस्ट नीड अ सलीबा कवर काइंड ऑफ हम्म थिंग। हम्म और इधर अगर तुम बेन वाइट को खिलाते हो और टिम्बर को राइट बैक कर देते हो, तो यू हैव अ कवर फॉर हम्म सलीबा आल्सो। हम्म तो तुम्हारा बैकलाइन तो फिक्स है, बट आई थिंक कैलाफियोरी डजंट नीड मूव द नीडल फॉर मी ब्रो। हम्म He doesn't move the needle, या क्योंकि you didn't lose the league last season because you conceded goals. हम्म You lost the league last season because मतलब because you didn't score more goals, या बस उस वे में you या didn't beat the small teams। या उसमें तुम 1-1 रहे या 0-0 रहे मोस्टली उन मैचेस में। हम्म ठीक है, तो ही इज नॉट अ नीडल मूवर फॉर मी। जो नीडल मूवर अगर मेरे लिए कोई होगा ना, ही विल बी इधर ए स्ट्राइकर, और मतलब बहुत अच्छा कोवाचिच टाइप ऑफ अ मिडफील्डर। That will be the needle mover for me. But you tell me, what do Arsenal need to go ahead and cross the line this time? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कल्चर है, जो मैंने प्री सीजन सारे मैच तो नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इट्स बिकॉज इन यूएस टाइमिंग वो अपना सुबह सुबह होता है, वो कोई देखता भी नहीं है। एंड इट्स बेसिकली नॉट फॉर अस, इट्स बेसिकली फॉर द यूएस फैंस, कि वहाँ पे उनका जो टिकट प्राइजेस होता है वो ओवर सोल्ड होता है, तो उनके टिकट प्राइजेस में वो काफ़ी कमा लेते हैं। इट्स बेसिकली द फंड जनरेशन फॉर द प्रीमियर लीग टीम्स। और
एज अ कल्चर, पहले कल्चर से स्टार्ट करता हूँ. कल्चर वाइज वी आर इन अ गुड पोजीशन, क्योंकि ये मैं हमेशा से देख रहा हूँ कि आर्सेनल और जो मिकेल अर्टेटा है कि पीपल फील हैप्पी टू प्ले इन एन आर्सेनल टीम, राइट. पहले ऐसे आर्सन वेंगर वाला हमेशा देयर इज यूज्ड टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रिफ्ट ग्राफ्ट, बहुत चेंजेस थे एंड पीपल वर लाइक वरीड कि मैं सीजन रहूँगा या नहीं रहूँगा, कि मतलब कोच पहले से फैंस आर स्टार्टिंग वेंगर आउट एंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. बट नाउ एक्चुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम these, at least for these, not for the 2 seasons I would say, पिछले सीजन और जो ये वाला सीजन है, जो उनका स्टार्ट है वो काफ़ी अच्छा अमिकेबल रहा है. पीपल आर हैप्पी, पीपल आर कंफर्टेबल प्लेइंग इन देयर ओन शूज. एंड ऑल्सो आई मीन आई हैव सीन कैलिफोरी हाउ ही वांटेड टू बी पार्ट ऑफ आर्सेनल. सो मतलब ये मेरे को अच्छा लगा एज अ कल्चर, मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड वी आर इन अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट बिकॉज that is how our culture is. That is how you build a culture in out of a club. Same as how Real Madrid used to play. उनका जो टीम केमिस्ट्री वो बहुत अच्छा रहता है. मतलब you can see the happiness in their faces. You don't see these kind of rifts between the players. And जो तेरा point है कि why we have signed Calafiori. Calafiori को इसलिए हमने साइन किया है. Yes, you are right कि it doesn't move the needle too much, right? It doesn't move the needle in the way we would like. But एक essential part of the हमारा जो सीज़न है वो हमेशा हम लोग कम रहे हैं. वो सीज़न है कि वी हैव नॉट एबल टू बीन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दी कप गेम्स, राइट. FA कप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया है. एंड ऑल्सो वी हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म इन दी Carabao कप एज वेल. सो आई थिंक मिकेल अर्टेटा को पता चल गया कि वी नीड सम डेप्थ इन द डिफेंस एज वेल. कि जो सलीबा जो पिछले गेम हर मैच खेला था, एंड ही हैज़ ऑल्सो प्लेड फॉर फ्रांस इन एवरी गेम. So he knows how it's tough for a player because the ability which he has done, he needs 100% on all the games, right? Saliba has shown that. So maybe he is sort of he wants that sort of pressure release from these kind of players. That's why he is bought for Calafiori. And also Calafiori is an Italian defender, and Italians are good with their basics, at least for defending. So मेरे हिसाब से कैलिफ्यूरी ही कैन बी डायनामिक. मे बी ही कुड प्ले आउट ऑफ राइस सिचुएशन व्हेन राइस इज नॉट फिट. सो मेरे हिसाब से ये एक डायनामिक साइनिंग है. बट right now it doesn't move in the necessary direction which I wanted basically in the Premier League. What else you So need? जो कोवा वाला जो कोवाचिच टाइप का प्लेयर है, आई थिंक देयर आर रूमर्स नाउ. आई थिंक फैब्रिजियो रोमानो के जो ट्वीट्स के हिसाब से एंड काफ़ी अच्छे मतलब जो ट्वीट्स के हिसाब से आई थिंक पर्सनल टर्म्स में निकेल मेरिनो के साथ अग्री हो गया है. I've seen him play and I've seen him highlights reel. वो कोविचिच जितना एफिशिएंट नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका स्टेचर लॉन्ग है, उसका बॉडी ऑफ बैलेंस उतना मतलब ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर. बट कोविचिच का जो वो ड्रिबलिंग में लैक करता है, वो उतना बॉल मतलब पासिंग में वो उसके पास प्लस है. सो इफ ही इज निकल मेरेनो इज कमिंग इन टू द टीम, एंड जो हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि जो पार्टे वाला जो है राइस के बाजू में जो बंदा खेल रहा है, वो एक हमेशा हमारा वीक पॉइंट है, राइट. इफ इट्स गोइंग टू बी पार्टे और इफ इट्स गोइंग टू बी समवन एल्स, राइट. सो Jorginho. Jorginho or someone else. So I think that is going to help us in the long run, because Odegaard भी इतना सारा efficient नहीं रहा अगर, तो Nikhil Merino can help us. I'm not saying he's a world class player because he's not proved anything. He's a decent player in Real Sociedad, and at least in the Euros he has surprised us. But उसके पास वो defensive ability है, उसके पास वो creative ability है where he can push us in the right direction, where he can supply. Again, I'm saying, note the point, he can supply, right? He can supply more assists, he can supply more create goal scoring opportunities and such. And of course late runs के साथ तो तुमने स्पेन में देख ही लिया है. He's a good enough player to create chances Bro, and also he's take not chances. 25, he's 28. He's 20. Sorry, yeah, he's 28. He doesn't have a tool. मैंने कब बोला उसका 25? I thought you said he is 25. No. I just said he's able to create chances. He's not the. That's why he's not. He's just for 30 million, right? He's not for. He's not. We've not got him for more than that. But ideal जो है, we need a striker, bro. I mean, I've been saying this. I think Kai Havertz के पास opportunities मिले तो थे. I think in the preseason. Again, I won't judge him, but he's awful in the case. I mean, Germany के साथ भी हमने देखा था. He was awful. He had many chances. ऐसे नहीं कि उसके पास 3-4 चांस हैं, है ना. He had many chances. So he should be in a club where भाई की चांस है, मतलब तेरे पास एक प्रीमियम चांस है तो तेरे को लेना ही पड़ेगा. आर्सेनल के पास ऐसा ही है. यू हैव टू टेक दोस चांसेस एटलीस्ट इन प्रीमियर लीग. वरना उसके पास ही डजंट बिलोंग इन आर्सेनल फॉर मी इन दैट केस कि ही प्रूव्ड समवन पीपल रॉन्ग, राइट. कि वो अच्छे मतलब ही स्कोर्ड गोल्स.
काई हैवर्ट्स का मेरे को ये लगता है कि हिज स्किल इज नॉट ऑन द बॉल मेजरली, कि ऑब्वियसली मतलब वो ड्रिबल नहीं कर सकता, ही इज ही बेसिकली द रन कांट, प्लेयर, वो भाग ही, सकता है। हाँ, बट द पोजीशंस दैट ही टेक्स, या दैट मतलब जो फुटबॉल, ही हैज फुटबॉल इंटेलिजेंस, आई नो दैट, ही हैज फुटबॉल इंटेलिजेंस एंड ही हैज अ टच, या ही इज अ वेरी गुड डेफ्ट टच। तूने देखा भी होगा चेल्सी में एक ऐसा आया था कि ऊपर से बॉल आई, देखा, मैं ठीक है, कंट्रोल करके गोल मारा था उसने, नहीं नहीं गोलकीपर गोल के नहीं मारा, सामने उसने ना। गोल वो तो था ही, वो वाला था ही, वो वाला तो है ही, वो जॉर्जिनो ने बॉल खेला था, वो हाँ। अलग है। एक मैं बता रहा हूँ कि एक उसके पास बॉल आई, हम्म तो उसने राइट पे था, उसने ना राइट से उसने बॉल को टच लिया हम्म एंड ही रबोना इट उसमें, हम्म ठीक है, राइट से उसने टच लेके, सॉरी लेफ्ट से उसने टच लिया, और लेफ्ट से टच लेके उसकी, क्योंकि डिफेंडर सामने था उसके, तो हम्म टच लेके वो ऊपर से लेके वो यहाँ पे राइट पे ले आया, हम्म और उसके बाद उसने शूट भर दिया, और वो खंबा लग गया, तो वो इतना हम्म गोल बड़ा हुआ नहीं, लेकिन ही हैज अ वेरी गुड टच, आई थिंक ठीक इट है। वाज अगेंस्ट रियल मैड्रिड और व्हाट, समथिंग अगेंस्ट। नहीं नहीं क्लब में ही था, क्लब अच्छा, में ही क्लब था, में था। मतलब ये प्रीमियर लीग में ही था। Yeah, but Pal, at least you have हाँ to agree तो that, right? He is नहीं, not the पर मैं player. वो बोल रहा हूँ कि जो जो उसके रन्स होते हैं ना, जो उसके Hmm. रन्स हैं और द पोजीशन दैट ही टेक्स, तो ही इज अ नाइटमेयर फॉर डिफेंडर्स इन दैट पीरियड। Yeah. पर उस पर वो नाइटमेयर तुम्हारा ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, क्योंकि मतलब उसके पास फिनिश नहीं है। क्योंकि आई डोंट, उसके हाँ पास भी नहीं है और टीम में किसी के पास हाँ नहीं है ना जो एफिशिएंसी हाँ है। क्योंकि हाँ अगर हमारे पास एक डिसेंट एनफ स्ट्राइकर है ना, हाँ। जो मतलब इवन टोनी को बोलते हैं, मतलब ही हम्म। टेक्स चांसेस ब्रो, बट बट वही आर्सेनल इज चांस। लिंक्ड विद, आर्सेनल इज लिंक्ड विद योकेरेस नाउ, योकेरेस ऑफ स्पोर्टिंग लिस्बन। Oh, okay. सो Well, I या, have not seen him. I have not seen him, and nobody has seen him bro. okay, so Nobody has nobody. seen Even I think I have maybe I've noticed when they're playing against us, right? Maybe uh, इतना मैंने notice नहीं किया है. But you know, I think we wanted an Isak और I wanted an even Tony because ये लोग है ना, मैंने देखा है इनको, they have taken these half chances yeah. headings या मतलब मैं वही चाहता हूँ कि मतलब जो 70% काम करता है खाई एवर्ड्स ये रन लेने में, तूने सही बोला, ठीक So है, would you बट आई take वांट समवन Osama? गिव Osimhen. Yeah, I want Osimhen, but he's very costly, right? No, कि मतलब suppose he Arsenal pays a I would fees. take him. I would take him. He's a beast. मतलब You I've think he seen is a him. beast? हाँ, I think he's a beast. I think you can change. I can. I He's am coming not for sure Chelsea, about I him. guess. I am not sure about him. I That's think why. he has done very good things for Napoli. So suppose if you have an option of Gyökeres, which you Hmm. have not seen, but he has scored goals. Hmm. He has scored multiple goals. मैं एक बार उसके stats बताता हूँ कि for Sporting last season in 33 matches he has 29 goals and 10 assists. Hmm. So 39 goal GA involvement in 33 मैचेस, सो वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। पर लेकिन उसमें तुम्हारा बीटी कब आ जाता है, मतलब तुम्हारा ये वो क्या बोलते हैं तुम्हारा उसको, मतलब जो बीटी का तुम्हारा कब आ जाता है, बैड ट्रिप किया ना तुम उसमें में नूनेज भी वहीं से आया है, बेनिफिका से, एंड ही Hmm. हैज स्कोर्ड मल्टीपल गोल्स देयर। Hmm. तो उसमें योकेरेस आता, तो अगर तेरे पास ऑप्शन चार है, मतलब Hmm. ईसैक तो है ही आइडियल ऑप्शन, चल हटा दे, Hmm. ईसैक हटा दो, ईसाक विल बी फर्स्ट, तो योकेरेस, टोनी, और ये थर्ड जो तूने नाम लिया अभी ओसिमन, Osimhen. तो हु वुड यू चूज? I would go for Tony, Ivan Tony. I think या आई वुड आल्सो गो फॉर मेरे टोनी। मेरे हिसाब से वो मतलब उसका जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ा सा रिग्ड है, मतलब बिकॉज ऑफ हिज बेटिंग प्रॉब्लम्स एंड सच, बट व्हेन ही प्लेड Bro, फॉर इंग्लैंड आई थिंक ही क्रिएटेड you employ डिफरेंस। you employ Thomas Partey, so don't worry about the personal lives. नहीं यार, वो ऐसा है ना कि जैसे कि वो लूकस पकेटा का अभी पता नहीं है वो क्या हो सकता है, मतलब वो बहुत हाँ बड़ा लॉस है ना एक क्लब के लिए। तभी सिटी जा भी नहीं है ना उसपे, वरना हाँ सिटी वुड हैव स्नैच्ड हिम अप। हाँ, मतलब सिटी को वैसे भी फाइन मिल गया 2 मिलियन यूरोस बिकॉज ऑफ हम्म द फॉल्स स्टार्ट्स दे हैव डन ड्यूरिंग द हम्म सेंटर फॉर 22 गेम्स एंड दे हैव बीन चार्ज 2 मिलियन पाउंड्स। सो मतलब everyone knows, everyone identifies the pain points. I think our pain point is still the striker because we need to be someone to be clinical. I think I don't know why Gabriel Jesus is there. I think he has to shoot. I think he has to be clinical. I think कितने साल हो गए यार उस बंदे को खेल के, वो कभी क्लिनिकल उसका है ही नहीं उसके मतलब दिमाग में, राइट? तो वो मतलब वो तो है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी आर इन अ गुड पोजीशन। मैं ये नहीं बोल सकता कि वी गोइंग बट आई टू, थिंक बट वी आर फॉर यू मरीनो इज नॉट अ, मतलब मरीनो कुड बी योर स्क्वाड प्लेयर बट ही इज नॉट अ लीग विनर फॉर यू उसमें में। मतलब लीग विनर तो हमारे पास आई स्ट्राइकर डोंट होना थिंक कि चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से द साइनिंग यू शुड डू नाउ, मेरे हिसाब से, बिकॉज यू हैव फिनिश्ड 2 सीजंस इन अ रो सेकंड, या और है ना लास्ट सीजन तो यू जस्ट मिस आउट ऑन द लास्ट डे इन द लास्ट 45 मिनट्स बेसिकली,
and just by 2 points only. तो अभी जो तुम्हारे साइनिंग्स होने चाहिए ना, इट शुड नॉट बी ऑफ स्क्वाड बिल्डर कि स्क्वाड बिल्ड करे, स्क्वाड मतलब स्क्वाड प्लेयर्स, वो वाले प्लेयर्स नहीं होने चाहिए कि इसको ले आते हैं, ही इज नॉट गुड, मतलब ही हैज शोन सम पोटेंशियल, पर ये देखते हैं अभी अच्छा नहीं कर रहा है, पर काई हैवर्ट्स टाइप साइनिंग पोटेंशियल है, पर आई डोंट नो कि व्हाट ही विल डू. तो आई Yeah, डोंट yeah. थिंक कि ये ऐसे साइनिंग तुम्हें करने चाहिए. नाउ जो चेल्सी, इफ यू रिमेंबर चेल्सी 13-14 सीजन, जिसमें मैन सिटी लीग जीती थी, जिरार्ड स्लिप वाला जो सीजन था, ठीक है, तो 3 टाइटल रेस उसमें 3 थी, चेल्सी भी उस टाइटल रेस में थी उस सीजन, ठीक है, पर चेल्सी 3-4 मैच पहले ही आउट हो गई थी. तो व्हाट डिड जोजे डू आफ्टर दैट? ठीक है, जोजे ने सिर्फ उस सीजन 2 साइनिंग किए थे, और बाकी तो छोटे मोटे स्क्वाड फिलर्स होते ही रहते हैं, ठीक है, पर जोजे डिड 2 मेन साइनिंग्स, और दैट टू उसने वो साइनिंग्स है ना जून से पहले ही कर लिए थे. वो 2 साइनिंग्स थे सेक्स फैब्रिगास और ये डिएगो कोस्टा, ठीक है, वो आए और लीग जीत गए. तो 1 मिडफील्डर एंड 1 स्ट्राइकर. तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें वो लेवल का साइनिंग पे जाना पड़ेगा ब्रो, कि यू कम हेयर एंड यू विन द लीग डायरेक्टली. कि तुम्हें टोनी या फिर ओसेमन, अगर इफ यू रेट ओसेमन, इफ आर्सेनल रेट्स ओसेमन, तो टोनी, ओसेमन, स्ट्राइकर फिक्स 100, मतलब जितने भी तुम्हें देने दो, खत्म करो भाई काम. और उसके बाद एक मिडफील्डर, सेक्सी सा कोई मिडफील्डर, कोई बढ़िया सा, कौन सा, कोई भी मिडफील्डर यार, कितने, बरेला फॉर एग्जांपल, बरेला, निको बरेला तुम्हें पसंद है, गो फॉर निको बरेला एंड स्टैच फिनिश हिम अप. तुम, क्योंकि तुम्हारे पास अभी नहीं ओडेगार्ड मतलब कर, आई थिंक मरीनो इज अ गुड प्लेयर ब्रो, ऐसे नहीं बोल सकते कि हम लोग को नहीं, इस बट ही मिडफील्ड इज में नॉट, प्रॉब्लम था ही ही इज नहीं नॉट, कभी. ही इज नॉट, मतलब वो मतलब तुम्हें सेकंड, he will not be, of course he is not Cesc Fabregas because नहीं अभी मैं, तो. पर मैं बोल रहा हूँ, ही इज नॉट द प्लेयर टू मूव यू फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट. Yeah, but I think I You think we need didn't players, lack the but you creativity in need midfield. players, but you need players who move from second to first for Yeah, you. but you need हमारे पास क्रिएटिविटी लैक नहीं था पहले. लाइक वी आर एडिंग इट टू द क्रिएटिव. वी नीड अ फिनिशर. मैं तो बोल रहा हूँ एक स्ट्राइकर हमारे पास अभी चाहिए. ही इज द वन. ही विल बी रिजल्टिंग इन दी You need, मतलब. but और स्क्वाड वाइज अगर देखा जाए तो you need a replacement for, you need a substitution for Saka, and you need a substitution for हाँ यस Odegaard. एग्जैक्टली. आई मीन Odegaard. ऑडेगार्ड जरूरी नहीं है. क्योंकि आई थिंक. फैबियो विएरा इज नॉट गुड एनफ, ही इज नॉट वर्थ आर्सेनल्स लेवल. फैबियो विएरा का सोचना भी मत तुम. आई थिंक कि तुमने जो स्मिथ रो भेज दिया ब्रो, लेट यू टेल मी कि हाउ डू यू फील अबाउट स्मिथ रो? डू यू आई हैप्पी थिंक दैट ही हैज गॉन, और या डू यू थिंक ही कुड हैव बीन द बैकअप ऑफ ओडेगार्ड इंस्टेड ऑफ फैबियो विएरा? यू शुड हैव सोल्ड फैबियो विएरा एंड केप्ट हिम अप. आई थिंक इट वाज अ वियर्ड. मतलब मेरे को स्मिथ रो बहुत अच्छा लगा. आई थिंक आई वांटेड हिम टू बी अनदर ही इज साका. द बॉलर ब्रो, ही इज द Right? बॉलर. I wanted him to be another Saka, but I think he was the only. I think it was a necessary sacrifice type हो गया है कि एक एन आर्सेनल मतलब वी वेयर मतलब हम लोग हर जगह से ब्लॉक्ड हो गए एंड वी वांटेड टू सेल समवन. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि वी हैव टू सेल समवन. राइट, वही वो एक बंदा हो गया. इट्स अ नेसेसरी सैक्रिफाइस. आई एक्चुअली आई लव स्मिथ रो. आई लव हाउ ही got up from very as a young Arsenal development, and then he grew up to this level. Basically we wanted him to be Saka, but वो नहीं रहा है, वो साका टाइप नहीं रहा है. बट इट्स ड्रीम राइट, एवरीवन वांट्स टू बी साका. अगर वो Right? फिट रहेगा ना नेक्स्ट सीजन, तो फुलहम में ही विल रिप अपार्ट. I think he's a decent enough player. I think हाँ. he will be missed as an Arsenal fan. तो मैं बहुत मिस करूँगा. But I think he's the necessary sacrifice in the sense he brought us some money, right? To sign at least a Calafiori or to sign, because हम लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे थे, but we are not able to sell players, right? That's been the problem for Arsenal, that we are buying a lot of players but we are not able to sell them at profit. तो छोड़, we are not even sell them at some good amount of money, because no Good. one wants to leave, and no one leaves basically, right? So I think that is one thing. But I think there is one other guy who is giving. I mean, I don't have any animosity towards him, बट एनकेटिया जा रहा है, वो भी एक रूमर है. आई थिंक एनकेटिया गया तो मतलब एक रिलीफ आ गया. भाई मेरे को तो ऐसा है कि कोई और बंदा हगे या ना हगे, मेरे को एनकेटिया मतलब ने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज उसने मिस कर दिए थे ना ब्रो. आई सॉर्ट ऑफ आई वांटेड हिम टू गो एंड डू समथिंग एल्स इन अनदर क्लब. मतलब वो उसको प्रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा था बिकॉज वी हैड नो वन, एंड ऑल्सो ही इज बिकॉज आई थिंक ही इज बिकॉज ऑफ इंग्लिश, कि इसलिए उसको मिल रहा था उसको प्रेफरेंस. वरना तो इज नोवेयर नियर द क्वालिटी ऑफ प्लेइंग इन अ टॉप 4 लीग और इवन इन द प्रीमियर लीग. आई वुड से कि वो एक डिसेंट प्लेयर है. ही इज अ डिसेंट एनफ प्लेयर. ऑफ कोर्स ही इज गोना स्कोर गोल्स because he's playing in Arsenal, and of course there are bad teams, right? He's going to play against bad teams. But he had opportunities to outsell. ऐसे नहीं बोलना सकते. He can't complain to himself saying that
भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं, राइट? ही हैड अपॉर्चुनिटीज। पर आई थिंक यू डिड द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग विद ट्रेवर चालुबा, वैसा हम्म कि तुम्हें वैसे जैसे इन माय व्यू कि वी शुड सोल्ड डिसासी, हम्म ही इज नॉट अ गुड एनफ प्लेयर हम्म एंड वी शुड सेल हिम। हम्म पर उसको लास्ट सीजन ही खरीदा है और 38 मिलियन पाउंड्स पे खरीदा था उससे डिसासी को, हम्म तो वी कांट सेल हिम नाउ उस वे में। तो वी हैव टू सेक्रीफाइस चालोबा नाउ, बट मेरे हिसाब से चालोबा इज अ बेटर प्लेयर हम्म देन डिसासी। तो वही चीज तुम कर रहे हो कि हम्म तुमने फैबियो वेरा खरीदा 35 मिलियन में, हम्म एंड यू शायद यू गेव हिम अराउंड 100,000 पर वीक, हम्म है ना? बट नाउ यू आर नॉट एबल टू सेल हिम, कोई नहीं हम्म खरीदेगा फेवियो वेरा को, 5 हम्म मिलियन से ज्यादा में, 10 मिलियन से ज्यादा में कोई नहीं खरीदेगा। हम्म तो तुम्हें अपना अकेडमी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, हम्म दैट्स द चर्न ऑफ इट बेसिकली। हम्म तो पर आई थिंक मेरे हिसाब से है ना, आर्सेनल नीड रेनफोर्समेंट्स अगर इफ यू हैव टू विन द लीग। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, बट दे नाउ द डिसाइसिव साइनिंग्स यार, कि तुम्हें अब है ना दो, अब तुम्हें ना मतलब यू आर एट योर पीक नाउ ब्रो, यू आर एट योर पीक, यू हैव फिनिश्ड 2 सीजंस इन अ रो सेकंड। उसके अलावा लीग रनर ने एक स्टैट बोला था कि देयर आर 17 प्लेयर्स ऑफ यू, उनका वेज 100,000 पाउंड से ज्यादा है। वाओ 17 प्लेयर्स का वेज 100,000 पाउंड से ज्यादा है। हम्म ठीक है, तो मतलब यू आर पेइंग गुड ऑल्सो, हम्म समझ रहे? तुम काई हैवर्ट्स को 280 दे वी रहे आर हो, साका। प्लेइंग गुड एंड वी आर इन द सेंटर ऑफ लंदन। वही है ना, लंदन में अगर एक बंदा आ गया तो हु वांट्स टू लीव? नो वन वांट्स टू लीव। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो तुम्हें अब तुम पीक पे हो, तो यू हैव टू डिलीवर नाउ दिस सीजन। ठीक है, जो तुम्हारे साइनिंग्स हैं, दे दे कांट पोर्ट्रे कि तुम है ना स्क्वाड बिल्ड कर रहे हो अभी भी, या फिर यू आर बिल्डिंग समथिंग टू इट नाउ। तो तुम्हारे साइनिंग्स होने चाहिए दैट शुड बी चेरी ऑन द केक, मतलब वो भी नहीं, वो उससे भी ऊपर कुछ होगा ना, आई थिंक नाइफ ऑन द केक होना चाहिए अब तो साइनिंग्स है, तुम्हारे चेरी भी नहीं। ठीक है, तो वैसे साइनिंग्स अब तुम्हें कर रहे हैं उस वे में। तो वो साइनिंग्स तुम्हारे योकरेज तो नहीं, टोनी है, कोई बहुत अच्छा मिडफील्डर है, हम्म काइसेडो वाइसेडो टाइप कोई मिडफील्डर अगर कोई देखा जाए जैसा, उस वे में डगलस लुइस अगर तुम साइन करते तो वो अच्छा होता। ठीक है, तो वैसा तुम्हें साइन करना है। पर ये तो होता रहेगा ब्रो, लेट्स मूव फ्रॉम आर्सेनल कि या एंड आई थिंक लिवरपूल के साथ कोई डिस्कस करने के लिए नहीं है, बट मैं यही बोलना चाहता हूँ लिवरपूल फैंस की, डोंट कीप्स योर होप। मतलब आई नो यू गाइस आर बट हिपोक्रेट्स ये वी एनीवे। हैव टू टॉक अबाउट देयर लैक ऑफ साइनिंग्स। या द लैक ऑफ साइनिंग्स तो हमने पिछले वाले वीडियो में बात कर ही लिया है, राइट? दे डोंट हैव हाँ, एनीथिंग, दे डोंट हैव एनी पुल, और इट्स आई थिंक एंड स्लॉट परफेक्ट है भाई, वो बंदा ठंडा खेल रहा है, राइट? उसको चाहिए ये वाला सीजन, उसको चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो अगले सीजन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेगा, उस मतलब इससे ही पता चल गया। एंड आई थिंक लिवरपूल फैंस ऑल्सो नो, बट बिकॉज ही इज नॉट साइनिंग एनी वन, दैट मीन्स ही इज नॉट गोइंग टू विन द लीग और डू एनीथिंग क्रेजी अबाउट इट। उसका लीस्ट एक्सपेक्टेशन है कि टॉप 4 है। उनको एक्सक्यूज मिल गया ना ब्रो कि हाँ हमने अब तो कोई साइन ही तो नहीं, लिवरपूल हाँ फैंस को कि हमने तो कोई साइन ही नहीं किया था, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम जीतेंगे। एग्जैक्टली हाँ, तो उन्हें मतलब मतलब वो है ना, मतलब जैसे ही किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना वो लिवरपूल फैंस, हम्म, तो वो एग्जिट डोर्स पहले देखते हैं कि मैं कहाँ से भाग हाँ सकता हूँ। भान इसलिए इसलिए दे आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट्स राइट नाउ। आई थिंक जैसे बोल रहे हैं ना, दे आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट्स, क्योंकि नॉट उनको रोहन। चाहिए ही नहीं कुछ बेसिकली, राइट? एंड मतलब लेट्स लीव लिवरपूल आउट ऑफ इट एज वेल। आई वही थिंक लेट्स वैलिडेशन विदाउट एक्सपेक्टेशन validation उनका, without मतलब टाइट। expectation. I think that's been a very good statement. वही स्पाइसी स्पर्स, हम स्पाइसी स्पर्स क्यों बोल रहे हैं आजकल लिवरपूल को? Mm, वही ना, कि वैलिडेशन विदाउट एक्सपेक्टेशन, कि हम ट्रॉफीज तो नहीं जीतेंगे, yeah, लेकिन हम जो खेल रहे हैं ना उसकी तुम प्लीज हम तारीफ थोड़ी सी कर दो, yeah, हम खुश हो जाएंगे उसमें yeah, में। yeah. या And so now let's another good another season. match that you won against Arsenal versus Man United, so let's move to the other team, Manchester. Yeah, Manchester United, right? I think what a horrible preseason they are having. I think they have. I think I wanted to say the news that they have signed decent players. Maybe not for now, but the future, like Lenny Oro, and I think Ugarte का पता नहीं आ रहा है कि नहीं, बट उनका एक ही साइन है क्या? वो जिस हिसाब से एक ही साइनिंग है शायद अभी तक तो, लेनी यूरो के हिसाब से उन्होंने और किसको साइन किया? आई थिंक देवर और Zugzi. हाँ जर्गसी, राइट? आई थिंक ही हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम वेकेशन, राइट? सो मतलब उसमें से अगर देखा जाए, नहीं, वो जग्सी यूएस नहीं गया, वो वहीं पे को ओल्ड ट्रैफर्ड में ही होता अच्छा है ओल्ड उनका, ट्रैफर्ड में ही है। कैरिंगटन में ही है उनका जो अच्छा ठीक है। एकेडमी है। आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? I think just before we were discussing about how it's necessary for the players to pre-season just to be accumulated with the pitch. You shouldn't exert 100%. You should move away from the tackles. You shouldn't play last ditch tackles. तुम्हारे पास ये नहीं है कि तुम्हें 100% देना. This is not the time to do it. And exactly the opposite they did. आर्सेनल के मैच के बाद लेनी यूरो इंजर्ड हो गया, हॉयलैंड गया उसका, मतलब आई थिंक लेनी यूरो इज गॉन फॉर 3 months. ही इज नॉट कमिंग बैक सून. एटलीस्ट 3 months। एटलीस्ट ये उसका पूरा सीजन खत्म है.
और उसके बाद ब्रो आने के बाद एटलीस्ट 1.5 months they will definitely Yeah. take to get up to the match fitness and take get up to हाँ, the running, मतलब क्योंकि उसका प्री सीजन भी गया, जो तू बोल रहा प्री सीजन भी गया, प्री उसको अब सीजन तो उसके 1 महीना तो प्री सीजन में ही लग जाएगा। एग्जैक्टली सो मतलब उसका पूरा अभी स्टार्ट मतलब पूरा स्टार्ट ही गया एंड इट्स ऑल्सो अ न्यू एनवायरनमेंट भाई। हम्म अभी मतलब न्यू एनवायरनमेंट पे बस समझ रहा है, तू नई कंपनी में आ रहा है, उसके हम्म बाद तू सिक हो गया 3-4 महीने हम्म तक। मतलब हाउ हाँ मतलब तू कितना फील क्रेजी फील करेगा, मतलब यू विल हाँ फील नर्वस भाई क्या हो रहा है, मतलब तू देखने जाएगा, मतलब तू मतलब पीपल विल नॉट नो व्हाट यू आर डूइंग, मतलब ऑफ कोर्स दे हम्म विल सपोर्ट यू, बट इट्स नॉट लाइक यू विल बी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं है ना, क्योंकि पहले से वो दोस्ती यारी नहीं बन रही है। तू रोज तो नहीं जा सकता ट्रेनिंग, तेरा पैर टूटा हुआ है, यू हैव हम्म टू गो टू सर्जरी एज वेल, कभी हम्म फिजियो में जाना पड़ेगा, लोग खेल रहे हैं तो फिजियो में करेगा, पीपल विल स्टार्ट कमेंटिंग आते ही इंजर्ड हो गया, भाई बैंटर तो होता है, ऐसा थोड़ी है कोई भाई आते ही इंजर्ड हो गया मजा, क्योंकि यूनाइटेड में ये कल्चर है ना, ये कल्चर डेवलप किया है, बिकॉज काफी लोग पिछले सीजन भी इंजर्ड थे, इस बार भी वही लोग इंजर्ड है, मतलब तो इनके पास डज टेनाग टू ब्लेम कि उसकी ट्रेनिंग मेथड्स अच्छे नहीं है, आई क्योंकि मैं थिंक पॉच को तो पक्का ब्लेम करता हूँ कि है ना उसका जो ट्रेनिंग मेथड्स है उसकी वजह से भाई चेल्सी it's not बहुत because इंजर्ड of the हुई है। training methods bro, it's basically because the problem has been right, the problem जो है बट it's ब्रो वो because of लेनी यूरो बंदा the अभी तक इंजर्ड character, नहीं हुआ है एक बार भी 2 साल में। जो उनका प्रॉब्लम है ना, उनका जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज और जो उनका मेडिकल फैसिलिटीज, मेरे हिसाब से देयर समथिंग लैकिंग देयर, बिकॉज आफ्टर रोनाल्डो टेलिंग समथिंग कि उनके पास जो इतने सारे ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, एंड यू सी प्लेयर्स ड्रॉपिंग आउट लाइक बेगल्स ब्रो। यू हम्म सी नाउ आई थिंक मतलब वो बंदा लेनियोरा गया, वो तो 18 साल का है भाई, ही हैज टू रिकवर ब्रो, उसके पास तो अच्छा मतलब 18 साल, मतलब अभी पेड्री, मतलब दीज क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आर लाइक पेड्री हु हैव इमेंस टैलेंट, बट दे आर नॉट फिट फॉर मेजोरिटी ऑफ द गेम्स। तो उससे एग्जैक्टली। क्या हो रहा है भाई, मतलब रीज रीज जेम्स। Reece James, मतलब these guys have talent but they are not fit, मतलब you have to concentrate on your body, then you मतलब एंटनी गया, राइट, एंटनी ऑल्सो केम एट 65 मिनट्स एंड देन 32 मिनट्स के बाद वो चला गया, फिर उसके बाद रैशफोर्ड भी गया, वो ही इज ऑल्सो होपिंग, वो भी गया हैमस्ट्रिंग है वो पकड़ के, वो वैसे भी वो उसका 60% है वैसे भी एफर्ट। वो पीठ को तो वैसे ही पकड़ कर रहता है मैं हाँ रैशफोर्ड तो। एग्जैक्टली, अभी और भी उसका 30-40% है, मतलब यू गाइस वर सेइंग दैट, मतलब इन्होंने निकाला था ना साका का जो हॉप है, मतलब लिम्प 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 है, लिम्प साका को लिम्प हाँ है, इन्होंने वो किया था भाई, बट मतलब एटलीस्ट व्हाई डज ही ऑलवेज लिम्प बिफोर अ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, बट व्हाट हैपेंस टू यू भाई, एटलीस्ट दैट गाय हैज प्लेड, बट तुम्हारे पास सीजन ही स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड यू गाइस हैव अनदर एक्सक्यूज कि टेनैग नहीं है, अब लुक शॉ खेलेगा ना, लुक शॉ सब कुछ कर देगा, एंड व्हाट अबाउट योर अभी क्या, अभी ब्रो दे हैव नाउ स्टार्टेड रिलाइंग बैक ऑन कैसेमीरो ब्रो, कि उन्होंने हाँ एंड कैसेमीरो बॉल्ड यस्टरडे एक्चुअली हाँ क्या टुडे मतलब, टुडे। हाँ एग्जैक्टली, कैसेमिलो स्टार्टेड लुकिंग लाइक ही इज बैक, मतलब इज लुकिंग लाइक ही इज बैक टू हिज ओन फिटनेस, बाय ही इज जस्ट 150-50 टैकल अवे बीइंग रेस्ट ऑफ द सीजन, उसका गिर गया, मतलब हाँ कैसेमिरो का एज कितना है, ही कांट प्ले इन द मोस्ट रिस्कीएस्ट पोजीशन वेयर ही हैज टू पुट हिज लास्ट हाँ डिच और टैकल वो भी एवरी टाइम। ब्राजीलियन एज है, ब्राजीलियन एज इज डिफरेंट फ्रॉम ए हाँ नॉर्मल एज। एग्जैक्टली, बिकॉज दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ ब्रो, ब्राजीलियंस हाँ मतलब उनका है ही, वो वैसे भी सुट्टा मारते हैं, पीते हैं, अल्कोहल करते हैं, मतलब उनके पास है ही नहीं वो डिसिप्लिन, क्योंकि वो हाँ रहते हैं, दे वांट टू लिव 100% ऑफ देयर लाइफ, दे डोंट वांट टू curtail anything, हम्म but it's a shocking behavior from, I think it's responsible of the coach first, like you said, of course, but also it's because of the management, like how they treat their players in terms of recovery and how what they say, right, कि भाई आराम से खेल भाई, तुम्हें आर्सेनल वर्सेस मैन्यू है, you don't, your main reason, first of all pre season में you don't have to score goals, you have to just be ball fit, you have to be match fit, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, you have to take runs, देख लो क्या strategy यूज करना है, but don't go 100% on a flying tackle, लेनी यूरो ने किया था bro, he wanted to he wanted to prove something that he is going to be there, एंड्रे ओनाना का टैक्टिक्स देखा वो कैसे एंटिक्स कर रहा था, मतलब डोंट डू दिस इन अ प्री सीजन, तुम्हारे लिए कमाई है क्या ये, मतलब हो सकता है दे पोस्ट दिस इन इंस्टाग्राम फीड्स एंड दे मतलब डू सोशल मीडिया पोस्ट एंड दे अर्न लॉट ऑफ मनी इन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, राइट, बट बेसिकली योर जॉब इज टू बी प्रेजेंट इन द प्री सीजन, not over exert, get injured, and your whole of the season is gone and your team is suffering. Mute है. नाउ लुक एट देयर स्क्वाड कि है ना उनका स्क्वाड बचा क्या है करंटली, कि उनका जो बैक उनके पास वरान तो बेसिकली चला गया, दे नीड रिप्लेसमेंट फॉर वरान एंड आई थिंक लेनी यूरो कांट बी रिप्लेसमेंट फॉर वरान। और अगर वो अब डिलीट के लिए उनका बात चल रहा है कि डिलीट दे विल बाय। हाँ ठीक है। अभी तो हाँ ठंडा हो गया ना यार काफी, डिलीट वाला नहीं बात। पर वो ये है कि मतलब बायर्न इज ट्राइंग टू साइन टा फर्स्ट। वो टार था ना टा, जो जर्मनी में खेला हाँ था। हाँ हाँ हाँ
हाँ, तो Bayern is trying to sign him first and then they will go let him go delete उसमें में। हम्म तो उनको अब डिलीट को साइन करना ही पड़ेगा। एंड हम्म ब्रो जस्ट इमेजिन पार्टनरशिप ऑफ सेंटर बैक्स ऑफ क्या बोलते हैं ये, जोनाथन हार्ट नहीं, डिलीट एंड हैरी मैग्वायर इन हाईलाइन इन हाईलाइन स्पेसिफिकली। भाई वो लोग हाईलाइन खेलते ही नहीं है ना, इसलिए वो लोग नहीं खेलेंगे भी खेलते नहीं। खेलते नहीं है, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि इमेजिन अ पार्टनरशिप ऑफ हैरी मैग्वायर एंड डिलीट। भाई कोई घूमने ही नहीं वाला है तो बस पीछे पास कर दो, मतलब टर्न होने में इतना साल लग जाएगा कि एग्जैक्टली। तुम्हारा बंदा निकल के भाग के मार देगा बट। और उनका लेफ्ट बैक लूक शॉ भी इंजर्ड ही रहेगा, वो नहीं होगा तो आके इंजर्ड हो जाएगा। उनका उनका जो एक उनका दूसरा लेफ्ट बैक जो है वो तारिक मलासिया, ठीक है, वो ऑलरेडी इंजर्ड है दिसंबर तक के लिए। अच्छा, वो वो अभी तक उसका रिकवरी नहीं है, पिछले सीजन पूरा गया है। अभी वो दौड़ना उसने जस्ट स्टार्ट किया है। अच्छा। ग्रास पे मतलब उसने खेलना स्टार्ट नहीं किया है, दौड़ना हम्म स्टार्ट किया है अभी बस। हम्म तो उसको तो साल लगने वाले हैं। हम्म तो उनके पास कोई है ही नहीं। व्हाट विल बी देयर सेंटर बैकलाइन? ओनाना, डेलो राइट में, हम्म और ये डिलिट मैग्वायर, और हम्म आई डोंट नो हु फॉर लेफ्ट बैक। तो मतलब कितना स्लो वो है ब्रो ये, कितना स्लो डिफेंस है। भाई ये मतलब मतलब पाल अगर अगर मतलब अगेन। अगर उन्होंने लेफ्ट बैक अगर लूक शॉ खिला लिया स्टार्टिंग में, तो चल डेला तो आगे पहुंच गया, ठीक है, डेलो तो भाग लेगा, क्योंकि डेलो अच्छा भी नहीं है, ये बात याद रखना व्यूअर्स दोस्तों, कि डेलो है ना, डेलो मतलब गोइंग फॉरवर्ड डिसेंट अच्छा है, इनफ है, हाँ। गोइंग फॉरवर्ड वो अच्छा है, पर मतलब डिफेंस में वो मतलब ऐसा वैन बिसाका नहीं है मतलब ही उसमें इज द लास्ट लास्ट डिच वाला बंदा है, ही इज द लास्ट डिच हाँ डिफेंडर, ही वांट्स, मतलब उसका पोजीशनिंग सही नहीं रहता है, ही इज द हाँ। लास्ट डिच डिफेंडर, सही है लगता है तो सही हो जाता है, खराब हो जाता है खराब हो जाता है, तो वो मतलब बैक वैसा है। थ्री खेलेंगे अगर हम्म डेलो को तुम थोड़ा आगे मान लो, तो दे हम्म विल हैव अ बैक थ्री ऑफ डिलिट मैग्वायर एंड लूक शॉ। फक हम्म। मी, आई एम आउट ऑफ हियर ब्रो। मतलब एग्जैक्टली मतलब यू लिवरपूल मतलब अभी मतलब आई सॉ गोल्डब्रिज, मार्क गोल्डब्रिज ट्वीट सेइंग दैट ही इज वरीड अबाउट 10x कोचिंग। वो ब्रो अब पिछले पूरा सीजन तो तूने पूरा काफी उसको किया था, अभी क्या हो गया ब्रो? नहीं भाई, ही वॉज द टॉर्च बियरर। हम्म टेनाग इनका वो टॉर्च बियरर था कि टेना को मत सैक करो, मत सैक करो, उसी ने पूरा मतलब हम्म ही हैज अ फॉलोइंग ऑफ 2 मिलियन ऑन यूनाइटेड स्टैंड सेल, हम्म और 1 मिलियन से ज्यादा की उसकी डेट्स फुटबॉल पे है। हम्म तो ब्रो उसकी उसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, बहुत हम्म बहुत ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस। तो तू पूरा मतलब टॉर्च बियरर था कि टेना को इन मत करो। और तुम अब देखो कि उसकी ट्रेनिंग, क्योंकि मैं पक्का प्लॉच को ब्लेम करता हूँ ब्रो, जितने भी लास्ट इंजरी। सीजन के इंजरीज थे ना, मैं पक्का पॉच को ब्लेम करता हूँ फॉर हिज हम्म ट्रेनिंग मेथड। एंड आई थिंक टेनाक का भी दिक्कत है कुछ, हम्म कि टेनाक भी ट्रेनिंग मेथड उसके इतने अच्छे नहीं है कि जिनकी वजह से ये इंजरी हो रही है, वरना इतनी इंजरी नहीं होती है यार, किसको हो रही है इतनी इंजरी इस सीजन, तो नहीं हो रही है हम्म अभी तक। मैन यूनाइटेड ऑलरेडी 4, अगर रेशफोर्ड भी अगर 3-4 वीक के लिए चला गया, तो उनके पहले 3-4 मैच तो वैसे ही गए। व्हाट विल दे एक्सपेक्ट? उनके पहले 3 मैच कौन है? उनके पहले 3 मैच हैं, एक सेकेंड, अभी कम्युनिटी शील्ड उनका नेक्स्ट वीक ही स्टार्ट होने वाला है ब्रो। सी हाउ टाइम फ्लाइज। नेक्स्ट हाँ। वीक, नेक्स्ट वीकेंड कम्युनिटी ओ शील्ड नेक्स्ट स्टार्ट वीक, है। उसके अगला वीकेंड मैच है अपना। उसके अगला वीकेंड मैच है, तो नेक्स्ट हम्म वीकेंड मतलब कटन रीजन कम्युनिटी शील्ड स्टार्ट आ गया। हम्म तो उनके फर्स्ट 3 मैचेस हैं फुलम, ब्राइटन एंड लिवरपूल। ओ शिट, फुलम है, फुलम, ब्राइटन एंड ऑल 3 ऑफ द टीम विल पॉप देम आउट ऑफ द पार्क। या सीरियसली विल पॉप देम आउट ऑफ द पार्क। या ब्राइटन का पता नहीं है क्योंकि उनका नया मैनेजर है, आई डोंट नो, वी डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू, हाँ, बट आई एम श्योर। पर एटलीस्ट डिजर्बी का वो तो होगा ही ना, मतलब ड्रग्स निकलने में थोड़ा टाइम लगता है ना तेरी बॉडी से, तो तो उसमें में उनकी बॉडी से भी वो जाने में वो टाइम आई थिंक लगेगा। फुलहम, मार्कस सिल्वा का जो फुलहम है वो तो बहुत बड़ा टफ मैच है, फर्स्ट ही पहला ही, हाँ क्योंकि वो प्लेयर्स भी इतना 100% नहीं रहते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस तो खेलेगा भी नहीं शायद फर्स्ट मैच, हाँ। क्योंकि वो फिट तो नहीं रहेगा, नहीं तो ये लोग हम्म खिला भी लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इनको। हम्म। रहना मतलब खिला लेगा। हाँ। तो मतलब आई थिंक इट्स अ सॉरी स्टार्ट फॉर द मैन यूनाइटेड फैंस, आई थिंक तुमने जितना होप तुमने जिता रखा है वो सारे तुम्हारे मैनेजर ने तोड़ दिया है, ब्रो एंड आई दिस व्हाट। टॉक्ड अबाउट देयर डिफेंस, यू टॉक्ड अबाउट देयर मिडफील्ड। इनका मिडफील्ड है कौन? हु इज देयर? द सेम मिडफील्ड ब्रो, इट्स गोना बी मेसन माउंट, मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, मेसन माउंट खेलेगा ब्रो, मेसन माउंट 4-3-3 में दिखेगा, मेसन माउंट, कोबी माइनो एंड देन कैसेमीरो ब्रो, इट्स गोना बी अगेन द सेम मिडफील्ड। क्या वो हैनिबल को खिलाएगा क्या? ओह नहीं खिलाएगा ना, शिट। एंड अगेन इट्स गोना बी गर्नाचो, आई थिंक, आई डोंट थिंक सो, अमाद अच्छा खेल रहा है, अमाद खेल अमाद। सकता है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो इफ ही इज अ स्टार्टर और नॉट,
कि बट ही इज अ गुड प्लेयर। ही इज अ गुड प्लेयर एंड अगेन आई थिंक जर्क्सी के पास अभी प्रेशर आ गया पहले से ही, पहले दिन से भाई पहले उन्होंने दिन से ही जर्सी प्रेशर पे आ गया प्रेशर ब्रो, डाल तेरे को दिया। ही गोल मारना पड़ेगा क्योंकि कोई बचा ही नहीं है करना जो मतलब खेल सकता है बट मार नहीं सकता है। और हाँ हमारा जो मिडफील्ड है वो तो खोखला है ही। तो तेरे या पास ही सारे बॉल्स आएंगे भर भर के लंबे हम्म वाले, जो कैसेमीरो भरता है, मैगवेयर भरता है, वो सारे हाँ। बॉल्स तेरे पास आ जाएंगे और यू हैव टू पास एंड सप्लाई एंड क्रिएट योर ओन चांसेस। अब वो कैसे मेरे को भी तुम है ना सिर्फ वीक इन वीक आउट ट्रस्ट नहीं कर सकते हो यार। एग्जैक्टली ब्रो, मतलब अरे हाँ भाई ही इज बेसिकली अ टैकल अवे फ्रॉम बीइंग इंजर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। आई एम नॉट, दोस्तों जब भी हम लोग ये बोल रहे हैं ना, वी आर नॉट विशिंग बैड थिंग्स ऑन प्लेयर्स कि वो हम्म लोग इंजर्ड हो गए तो हम लोग उसको ये रेल कर रहे हैं, बट हम लोग हम्म ये बोल रहे हैं भाई यू हैव टू बी केयरफुल फॉर प्री सीजन। प्री सीजन इज नॉट अबाउट शोइंग योर टैलेंट टू एनीवन, मतलब दैट हम्म इज द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। मतलब प्री सीजन में तू फ्लॉप भी रहा है, नो वन गिव्स अ शिट अबाउट यू। हम्म। क्यों मैच में तूने एक गोल, पहला मैच में तूने एक गोल मार दिया, एक असिस्ट हो गया, तो तेरे प्री सीजन तो कोई याद भी नहीं रखेगा, भूल जाएगा ब्रो। एग्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट गेटिंग फिट एंड टेकिंग मैनेजर इंस्ट्रक्शंस ऑन टू योर माइंड। उनको माइंड बस छाप लो, बस दो छापना चीज है करनी होती है। बस, तू मतलब गोल ठाप देगा, मतलब ओन गोल मरवा देगा, कोई परवाह नहीं है। बिकॉज हम्म आई थिंक वेन यू नो हाउ टू प्ले, आई थिंक बिकॉज दिस इज हाउ प्री सीजन वॉज बिफोर अर्लियर, राइट पाल? बिकॉज नो वन यूज टू वॉच एंड नाउ इतना कमर्शलाइज हो गया है एंड पीपल वॉन्ट्स टू प्ले 100% की, मतलब दे वॉन्ट द फैंस, मतलब जो फैंस देख नहीं पाते प्रीमियर लीग, वो लोग चाहते हैं कि दे वॉन्ट हम्म टू सी द स्टार्स, right, when they हम्म play. So that is why I want to take you to just see how Ronaldo used to play pre-season. भाई वो एक गेम खेलता मुश्किल से, जब वो हम्म। बारसा के साथ खेल रहे हैं, जब वो चेल्सी के साथ खेल रहे हैं, द टू कैमियो खेलता है, बस वो निकल जाता है। नहीं नहीं, सेम वो गोस फॉर वो मेसी। पहला मैच जो सीरीज खेलता है रोनाल्डो मेसी, दैट विल बी देयर सुपर कप जो होता है ना उनका हाँ इंटरनल वाला। वो एग्जैक्टली, पहले, या फिर जो अगर चैंपियंस लीग जीती हुई है तो जो सुपर कप होता है, यूएफा हाँ सुपर कप, एग्जैक्टली वो उनका पहला सीरियस मैच होता है। एग्जैक्टली। तो तो मतलब यू हैव टू गो एंड गेट दीज प्लेयर्स। भाई तुम्हारा इतना फिटनेस तो पहले से है नहीं मेरे हिसाब से, जितना लगता है, जितना इंजरीज आजकल जो ऐसे लगता है कि मैं जो मतलब कुछ टैकल 50% टैकल होता है यू गेट इंजर्ड, राइट? बिकॉज हम्म दैट इज हाउ आई थिंक, बिकॉज ऑफ द फूड डाइट एंड एवरीथिंग, मसल हम्म स्ट्रेंथ जो भी है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बट दिस इज वॉट इज हैपनिंग। बट एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब, they have signed an exciting 18-year-old, and then they don't want him to play as a start, but he's coming कि तुम लोग एक कोच करो, उसको बिल्डअप करो, आते ही इंजोर करवा दिया। ये थोड़ी है, मत खिलाना यार मैन सिटी, मतलब आर्सेनल वाला मैच इतना बट हाई नहीं, इंटेंसिटी है। वो ठीक है, पर मैं ना उनकी पिचेस को भी थोड़ा बोलूंगा कि हाँ ब्रो, अमेरिका अमेरिका इज नॉट गुड इनफ कंट्री टू होस्ट अ क्योंकि वो वर्ल्ड कप दोनों नाउ। खेलते हैं भाई, वो हाँ दोनों वो खेलते हैं, दे डोंट हैव ब्रो वर्ल्ड कप डेडिकेटेड होस्ट पिचेस। कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट 2 साल बाद यार। वो लोग वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले हैं, तो वर्ल्ड कप में क्या होगा तू वो सोच यार। वो तो तूने वर्ल्ड देख ही कप, लिया है कि इंडिया का जो T20 में क्या हुआ था। हाँ तो वहां की पिचेस देखी थी, कितनी हम्म। गंदी पिचेस थी। तो मतलब आई डोंट थिंक, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा दुख होता है एनकुकू का होता है, क्योंकि मतलब लास्ट सीजन एनकुकू जस्ट आया था, Also, उसको yeah, I mean, this उसको is a बस खिला perfect रहे थे। segue. Let's discuss. I हाँ mean, I think I'm disappointed not because of the club. I think Manchester United, they're a good club, but हाँ when they try to go, it's because of the management. They lack this kind of. I just have two last points of Manchester United कि हाँ they will have a tough season ahead. They हाँ will have to brace themselves. And second, टेन हाग का तुम्हें भाई देख लो कि जब तक तुम है ना पूरी दुनिया चेंज कर लो, जब तक डगआउट चेंज नहीं होगा ना तुम्हारा, हम्म। यू विल हैव अ टफ टाइम। अभी ये तो वैन निस्टेलरॉय हो गया तो इनको बहुत मजा आ गया। हाँ भाई, कि वो उनका वो चल रहा है ना कि सिक्स मतलब फुट भाई टू तुम है, लोग को क्लियर एंड वैन क्लियर इट्स अ निस्टेलरॉय का डच ऑरा बायस है, हो रहा है ऑरा। भाई। हाँ डच बायस नहीं हो रहा है ये। वो तो हो ही रहा है, पर ये ऑरा, ऑरा के फिर रो पड़े ब्रो कि ऑरा है 6'2" वैन निस्टेलरॉय का ऑरा है। और दूसरा चीज क्या है ना, मतलब जैसे अगर टेन हाग ने कुछ गलत किया तो वी विल चक टेन हाग आउट एंड वैन निस्टेलरॉय को लगा अच्छा देंगे हाँ, वो तो है ही ना कोच में। बैकअप वो में। चल रहा है भाई, वैन निस्टेलरॉय ने क्या किया है? कुछ तुम नहीं कितने, है। तुम वो फ्रैंक लैम्पार्ड है अगला, वो स्टीवन जिरार्ड है अगला, एग्जैक्टली। वो ये मिकेल आर्टेटा तो नहीं बोल सकते। एक और था ना, वो कौन, एक और बंदा आया था ना, आई फॉरगॉट, वो टॉटनहम का कोच कौन था, वो 29 साल का यार, रायन हाँ मेसन, रायन रैन मेसन मेसन। रायन मेसन है वो अगला। यू I डोंट mean, नो। weird, weird. So I think I mean, it's a perfect segue now to move on to another exciting team, at least for the preseason. Mixed preseason रहा है, but it's okay. मतलब and let's talk about Chelsea now. मैं एक बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ, इट्स हॉनरेबल मेंशन है, वो है क्रिस्टोफर एनकुकू। मैंने एक्चुअली ये पाल, तू जानता भी नहीं था एनकुकू को, जब चेल्सी ने साइन किया था आई सेड ही इज अ डिसेंट प्लेयर, राइट? तूने बोला हाँ वो ठीक है, बट वो इंजर्ड हो गया, राइट?
मैंने देखा है उसका हाइलाइट्स भी देखा था और कुछ कुछ मैचेस मैंने देखे थे एनकुकू को खेलते हुए. आई थिंक ही इज अ गुड डिसेंट. इवन आई वांटेड आर्सेनल टू साइन एनकुकू एक्चुअली. मतलब मैं बीटेक वर्जन ऑफ हजार्ड वैसा बोल सकते हो कि मतलब हाँ उसमें मतलब मैं. बोल सकता है बट मतलब उसके हाँ. पास हजार जितना ड्रिबलिंग वो सब नहीं है बट उसके पास इंस्टिंक्ट्स है गोल स्कोरिंग का. मेरे को वही फिनिशिंग चाहिए था. फिनिशिंग है, उसकी फिनिशिंग है. फिनिशिंग है. आई थिंक ही एग्जैक्टली. इज अ गुड फिनिशर. ही इज अ मतलब फिनिशर. वो कभी मैच फिट रहा ही नहीं पिछले सीजन. दैट इज व्हाई ही वाज नॉट एबल टू फिनिश प्रॉपर्ली. आई थिंक निकोलस जैक्सन को मतलब he doesn't have the pace of Nicholas Jackson. I think he's 100 to 200% more finishing of more ability of Nicholas Jackson of finishing है. And हम्म. Nkunku can be a decent enough striker. I think he can give you goals. हम्म. And जो second बंदा है हम्म. जो पिछले मैच में बोला था लिवरपूल फैन ने कि लाविया अच्छा नहीं है. ब्रो लाविया एक्चुअली मैंने अभी हाइलाइट्स भी देखे हैं और मैंने साउथहैम्पटन में मैंने फॉलो किया था जब मैंने बोला था कि ही इज़ अ परफेक्ट आर्सेनल वाला बंदा है. हम्म. जब मैंने बोला था क्योंकि ही हैज़ द एबिलिटी टू टर्न इन एंड आउट ऑफ द मिडफील्ड. मतलब उसको एग्जैक्टली. चाहिए ही डजंट नीड टू हैव द फर्स्ट टच इन फ्रंट ऑफ हिम. वो हम्म. कहीं भी फर्स्ट टच ले सकता है. एंड ही ऑल्सो लुक्स फॉर स्पेसेस एंड उस वाले स्पेस पे वो फर्स्ट टच लेने वाला बंदा है. एंड ही हैज द ड्रैग एबिलिटी. वो ड्रैग करके ले जाता है. वो कभी हमेशा हम्म. वैसा नहीं कि वो ड्रिबलिंग वाला छोटे छोटे वाला नहीं. वो ही ड्रैग. सो दैट्स वाई उसका जो पेस है वो हमेशा हमें ज़्यादा लगता है. नो ही इज़ नॉट अ पेसी टाइप ऑफ अ गाय बट उसका पेस हमें ज़्यादा क्यों लगता है बिकॉज ही कवर्स ग्राउंड मोर बिकॉज वही उसके पास वो ड्रैग वाला एबिलिटी है. वही लूसियो. लूसियो जो मतलब मतलब जैक डग विल्शर करता था याद है. नहीं, लंबे लंबे डग वैसा वाला. हाँ लंबे लंबे जैक विल्शर यूज टू कवर हम्म. डिस्टेंस इन द मिडफील्ड लाइक इज नथिंग. मतलब 3-4 स्ट्राइड में उसने मिडफील्ड कवर कर लिया. एंड हम्म. यू कैन सी दैट इन जावी करता था ये. मतलब उनके पास स्ट्राइड्स इतने लंबे लंबे थे. दे यूज टू इनिएस्टा बेसिकली. इनिएस्टा मतलब इनिएस्टा बेस दोनों थे क्लोज कंट्रोल और वो भी था मतलब. बट ही हैज द पोटेंशियल टू डू गुड एंड ही हैज हम्म. डन गुड एज वेल. उसके पास क्रिएटिव एबिलिटी था. साउथहैम्पटन में वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट था भाई जब रोमियो हम्म. लावियो खेल रहा था. ही यूज टू पास अराउंड ऑलमोस्ट. लिवरपूल के मैच देखे थे मैंने साउथहैम्पटन हम्म. वाला. he basically fucked Liverpool's midfield. वो ही सिंपल. बुलीड वो एंडो. ही बुलीड एंडो. मतलब बहुत अच्छा. मतलब एंडो तो नहीं. एंडो नहीं, सॉरी, वो उस टाइम फेबिनियो. फैबिनो. ही बुलीड फेबिनियो. फैबिनो. मतलब हम्म. ही वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लेयर बट वो इंजर्ड हो गया राइट. हम्म. बट आई थिंक दीज वर टू हॉनरेबल मेंशंस फ्रॉम माई क्रिस्टोफर हम्म. एनकुकू एंड ऑफ कोर्स रोमियो लाविया. बट बाकी तो यार चेल्सी आई हैव सीन द हाइलाइट्स एज वेल. It's same mistakes like how they conceded against Pochettino. Same mistakes. It's like by building up तुम लोग एक गोल खाते ही हो. वो तो है ही तुम्हारा. डिसासी या मतलब जो भी है पास देने वाला बंदा वो हमेशा गलत करता है. वो तो तुम खाते ही हो. तो तुम्हारा है ही. जो सेल्टिक ने तुम्हें छोड़ा था 4-0 वो तो ऑलमोस्ट बिल्डअप में ही उन्होंने छोड़ा था ना प्रेस करके. अरे वो विंग्स ही नहीं है ना, तुम ऊपर बॉल दो और तुम्हारे जो सेंटर बैक्स हैं, तू यू स्पीक, या आई स्पीक एंड लेटर. ऑल्सो आई थिंक मतलब जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ जो मिस्टेक्स से तुमने गोल खाया है. आई थिंक यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स. इट्स नॉट लाइक न्यू काइंड ऑफ मिस्टेक्स कि वही ड्रग्स, पोचिटिनो ड्रग्स. हाँ वो उतरते उतरते टाइम लगेगा, अभी मरस का ड्रग्स जाने में टाइम लगेगा. एग्जैक्टली. और ये ब्रोया अमेंडा ब्रोया वो अभी भी वो हगू हुई है. मतलब उसको इट्स लाइक बेचना है. वो हमेशा से हगू है शायद. वो अभी भी उसके पास कुछ भी एबिलिटी. इतना अच्छा उसके बॉडी फिटनेस है भाई. इतना लंबा है. इतना स्टॉन्च है. मतलब ही हैज द एबिलिटी. पेस है उसके पास. सब कुछ है. स्ट्रेंथ है. बट ही कांट फिनिश right. He's in the right positions almost every time but he can't finish. मतलब we can't say he has the pace of David sorry Nunes जितना पेस नहीं है बट यार फिनिश तो कर सकता था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वन एक्साइटिंग न्यूज फॉर यू. कॉनर गैलेगर जा सकता है. बस पर्सनल टर्म्स अग्रीड नहीं है. क्लब ने अग्रीड कर लिया. भाई निकलना नहीं चाहता भाई. लंदन कौन छोड़ना चाहता है यार. वही तो. अबे एस्टन विला के साथ कर दिया था कि बर्मिंघम चला जा. बर्मिंघम इतना दूर भी नहीं है. इट्स द मिडलैंड्स. मतलब इंग्लैंड एक्चुअली ब्रो, मतलब तुम यूके का नक्शा देखोगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है. इट्स नॉर्थ, मिडलैंड्स एंड साउथ. तो साउथ में ये ब्राइटन लंदन क्लब्स आ जाते हैं. मिडलैंड्स में ये एस्टन विला और ये सब आते हैं. और अप नॉर्थ में ये मैनचेस्टर और लिवरपूल वाले क्लब्स आते हैं. तो मतलब एस्टन विला तो इतना दूर भी नहीं है. मिडलैंड्स ही है. मतलब इट्स लाइक कितना कितना सा होगा जयपुर से. मतलब मेरा घर 150 किलोमीटर इतना दूरी होगा. तो चला जाओ भाई, चला जाओ. क्योंकि उसमें और एस्टन विला ने तो रिकॉर्ड फीस करा था, कुछ 40-45 मिलियन किया होगा. ये इसके एथलेटिक के साथ तो 30-35 ही है शायद. तो ब्रो लेट मी स्टार्ट ऑन फर्स्ट प्लेयर, वेस्ले फोफाना. ठीक है ब्रदर, बिग अप टू यू. Seriously, to raise your voice against racism, discrimination and all against your own team player which you have done and disturb the team harmony. Big up to you. ठीक है. पर परफॉर्म ब्रो, परफॉर्म. थोड़ा भाग ले.
थोड़ा थोड़ा भाग ले, मतलब है ना, वो सांचेज पीछे से चिल्ला रहा है वेस्ट 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 वेस्ट, और वो बंदा पता है जॉग कर रहा है ब्रो, जॉग कर रहा है। यू आर 70 million pound प्लेयर, इन 2 seasons you have played like 3 matches or 4 matches in total, and you have gotten injured for whole 2 seasons। ठीक है, अगर इस सीजन भी अगर तू इंजर्ड हो गया ना और तू अच्छा नहीं खेला, तो आई विल बी ऑन टू योर केस। मैं सबसे पहले तेरे केस पे होऊंगा कि फर्स्ट यू हैव डिसरप्टेड टीम हार्मनी। ठीक है, कि मतलब तू एक बता, अर्जेंटीना वाला जो केस हुआ था एंजो वाला, कि फ्रांस के कितने प्लेयर्स हैं चेल्सी की टीम में? ठीक है, मतलब एनकुकू है, मालो गुस्टो है, डिसासी है, ठीक है, और बादिया शील है। ठीक है, कितने प्लेयर्स हैं? और भी होंगे, और भी बहुत 3-4 और होंगे, पर ही वॉज द वन टू डिस्टर्ब, क्योंकि भाई के पास टाइम पास करना है। ठीक है, क्योंकि खेल तो वो रहा नहीं है, परफॉर्मेंस वो दे नहीं रहा। एवरीवन कुड हैव स्पोकन अप। ठीक है, मैकेलिस्टर था, सॉरी वो गर्नाचो भी उस बस में था, मैकेलिस्टर भी उस बस में था, बहुत लोग उस बस में थे, लेकिन किसी का फ्रेंच टीम प्लेयर ने ऐसा आके बोला नहीं कि हाँ भाई ये तो रेसिज्म है, ये रेसिज्म है। मतलब मेरे हिसाब से वो रेसिज्म होगा, ठीक है, लेकिन दैट्स कुड बी सॉर्टेड इंटरनली आल्सो, आई थिंक इट शुड हैव बीन सॉर्टेड इंटरनली, है मतलब ना पब्लिक में भाई? बोलना नहीं चाहिए था। ब्रदर सीरियसली, वेस्ले फोफाना ब्रदर, मतलब लिसन टू मी, आई एम डायरेक्टली स्पीकिंग टू द कैमरा, लिसन टू मी। ठीक है, आई विल बी ऑन टू योर केस अगर तूने इस सीजन परफॉर्म नहीं किया तो, कि रेसिज्म वेसिज्म ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बात, लेकिन ठीक है तू बात उठा रहा है, ये आवाज उठा रहा है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट ले रहा है, वो ठीक है, लेकिन फर्स्ट तू अपने सिलेबस में अच्छा हो ब्रो, वो ज्यादा जरूरी है कि चेल्सी की तूने खेला नहीं है। सेकंड, मैं दूसरा प्लेयर बोलना चाहूंगा, सांचेस। ठीक है, ब्रदर प्लीज गेट आउट ऑफ माय क्लब, सीरियसली। वो भाई तूने वो प्लेयर्स देखा है कि ये यॉर्गे एंसन जो अभी चेल्सी ने साइन किया कीपर, वेलेंसिया वाला या विलारियल वाला, कौन सा है वो? देखा क्या तूने उसको, देखा है कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा है उसको। पता नहीं, चेल्सी ने एक प्लेयर 21-22 साल के कीपर साइन किया है, तो मतलब वो आ रहा है, तो वो सांचेस, डिसेंट है। हाँ सांचेस, मतलब सांचेस के पास क्या है, वो बोजो मूवमेंट है। हम्म। ही हैड दैट गेब्रियल मोजो मोमेंट, जो तुम्हारा गेब्रियल है ना, उसका वाला बोजो, पर गेब्रियल ने अब कम कर रखा है, इट इज अंडर कंट्रोल। उसका वो उच्चक उच्चक के बाहर नहीं आ रहा गेब्रियल का। सांचेज का वो हर 10 मिनट में बाहर आ जाता है, वैसे उसमें तो वो डेक्लन राइस वाला गोल याद है चेल्सी का अगेन? वी हाँ। वर 2-0 अप क्रूजिंग, वी वर 2-0 अप क्रूजिंग 78th मिनट तक। सांचेज भाई को पता नहीं क्या हुआ, क्या उल्टा सीधा पास देना, वो डेक्लन राइस आके गोल मार गया, और फिर साका ने के असिस्ट से इक्वलाइज कर दिया। ठीक है, तो ब्रो सांचेज गेट आउट। ठीक है, तीसरा चीज कि रीस जेम्स को मिडफील्ड में खिलाना थोड़ा बेवकूफी है। मतलब ही इज ए प्लेयर हु इज गुड, मतलब वो मिडफील्ड में भी अच्छा खेल लेगा थोड़े दिन बाद, क्योंकि अभी उसके लिए वो नई पोजीशन है तो टाइम लगेगा, पर उसको आगे जाके वो जो उसके शूट्स हैं, जो उसका क्रिएटिविटी है, जो ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग तो थोड़ी बहुत है, पर जो उसके क्या बोलते हैं क्रॉसेस हैं, वो तुम्हें उसे राइट बैक से ही मिल पाएंगे। तो यू शुड इन्वर्ट कुकुरेला। कुकुरेला आ जाए ना तो यू शुड इन्वर्ट हिम, क्योंकि कुकुरेला डिसेंट है इन्वर्ट होने में फुल बैक से, लेकिन रीस गेम शुड बी बॉम्बिंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से, तो वो थोड़ा वो गलती कर रहा है। बेन चिलवेल गेट द फक आउट, सीरियसली गेट द फक आउट ऑफ, मतलब ये दो प्लेयर्स जिस दिन आउट हो गए ना दिनेश, विल हैव अ स्ट्रीम, सीरियसली विल। ज्ञान कौन है गैलागर, और ये दूसरा बंदे का नाम क्या है, ये बेन चिलवेल। बेन चिलवेल, दोनों के दोनों ब्रिटिश 1% टेक्निकल एबिलिटी नहीं है। और जो तीसरी चीज तो मतलब मैं ब्रो, ये सिमियोनो पे मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि भाई तुझे क्या हो गया है, कि तू कैसा मिडफील्ड खिलाना चाह रहा है भाई? तेरे पास कोके और सॉल था ना उसका नाम बंदे का, तेरे पास कोके और वो सॉल जैसे प्लेयर थे टेक्निकल, जो जिससे तूने 2012-13 से जो अभी तक 2021 तक खेले हैं, अरे एक बंदे वो करता है ना, वो ट्रिपियर जैसे बंदा, तो ये है ना? ट्रिपियर जैसा ही है। पर ये डिपॉल और ये कॉनर गैलेगर का मिडफील्ड ब्रो कैसा होने नहीं वाला चलेगा है? ब्रो, मेरे हिसाब से इट्स बेसिकली, मेरे हिसाब से ही वांट्स अ भगोड़ा, समझ रहा है? नहीं, पर डिपॉल है ना उनके पास भगोड़ा, डिपॉल तो दो काफी भगोड़ा क्या इज करेगा? आउट, उसका लेग्स खत्म है भाई, वो सिर्फ अर्जेंटीना अच्छा, में खेल मतलब सकता है। तू ये बोल रहा है कि ही इज डिपॉल्स रिप्लेसमेंट? आई डोंट थिंक सो इज डिपॉल्स रिप्लेसमेंट, आई थिंक ही विल बी इन द स्क्वाड जस्ट टू रन, हम्म मतलब जैसे ट्रिपियर को किया था ना उन्होंने, हम्म वैसे ही है ये भी। हम्म उसके बाद मेरे हिसाब से जो अब, एक्चुअली मैं 3 साइनिंग्स तो ये नए मानता ही हूँ, कि ये लाविया का, सॉरी रीस जेम्स न्यू साइनिंग फॉर अस नाउ। ठीक है, लाविया इज ए न्यू साइनिंग फॉर अस, और एनकुको इज ए न्यू साइनिंग फॉर अस। 3 न्यू साइनिंग तो वैसे ही है। ठीक है, तो वो तो अच्छा खेलने ही वाले हैं, पर आई थिंक अगर तू, आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट सेंटर बैक्स, कि हाउ गुड दे आर, क्योंकि टोसन आई डोंट नो हाउ गुड ही इज, क्योंकि मैंने इतना फिल्म में देखा है, पर इतना तो हमने नहीं देखा कि एनालाइज करें कि हाउ गुड ही इज। और टोसिन अगर फिल्म में गोल खाता भी होगा तो खाएगा ही, फिल्म ही है, दैट्स इट। तो टोसिन आई डोंट, मतलब तेरे हिसाब से हु शुड बी आर स्टार्टिंग सेंटर बैक? आई विल गिव यू द ऑप्शंस: टोसिन, वेस्ले फोफाना, बादिया शीले, डिसासी एंड लीवाई कोलवेल।
ब्रो ऑल आर मिड। ऑल आर मिड। उनमें से मेरे कोलविल हिसाब थोड़ा से थोड़ा जो बेटर हो सकता है। पोटेंशियल है वो एक्चुअली टोसिन है, क्योंकि उसने फुलहम में मैंने देखे थे कि उसने अच्छे अच्छे मैच, बट ही मतलब मेरे हिसाब से जो भी तुमने नाम बताया था ना, उनमें सब में एक मिस्टेक्स है, एक मिस्टेक है हम्म। गेम में। फोफाना में एक मिस्टेक है, बैदिशील में एक मिस्टेक है, फुफाना पहले भाग ले ब्रो। डिसासी में एक मिस्टेक है, डिसासी लिवे में कोलवेल 15 में, मिस्टेक है। मतलब हर चीज में कोई ना कोई एक बंदा हम्म। मिस्टेक करता है हर गेम में। इट्स अबाउट बेसिकली you shouldn't concentrate on a defense because you can play anyone because that हम्म। is how your defense are. But I would say I think he would इफ यू go हैव टू for पिक द बेस्ट Badishil टू, तो खेलेगा, I think इफ यू Badishil खेलेगा, Badishil and I think Fofana, I think that's what is going to be your center बट backs. फोफाना मैं नहीं खिलाना चाहता ब्रो उसको। 2 साल से वो नहीं खेला है, तो हाँ। अंटिल ही कम्स बैक टू हिज फुल मैच शार्पनेस, हम्म। तब तक मैं उसको नहीं खिलाना चाहूंगा। तू तब तक आवाज उठा वो। आई थिंक मतलब हम लोग ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कि हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं इट्स नॉट अ रेसिस्ट थिंग। हम हाँ। लोग ऑफ कोर्स ये बोल रहे हैं कि इट्स अ रेसिस्ट सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस बाय द अर्जेंटीन प्लेयर्स, बट वो उनके कल्चर में एम्बेड है। हाँ। बट इन द से कि मेरे हिसाब से फुफानो को जो आवाज़ उठाया था, ई शुड हैव स्पोकन टू एंडो डायरेक्टली बीइंग हिज हम्म। ओन टीममेट। भाई दिस इज नॉट कल्चरली अप्रोप्रिएट, ये हम हम्म। लोग ऑफेंस करते हैं, हम लोग भी फ्रेंड्स हैं, वी आर फ्रेंच थ्रू एंड थ्रू, we are हम्म। not Africans or something. So या you could have said this after a long time. Even जो एम्बापे पे तो डायरेक्ट दिखता, एम्बापे ने कुछ भी नहीं किया, राइट? हाँ। तो मतलब बट आई मेरे को थिंक एक इट कुड चीज, हैव बीन डेल्ट इन अ बट डिफरेंट आई हैव मैनर। जेन्युइन क्वेश्चन, आई हैव जेन्युइन क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड। आई डोंट नो कि मतलब इसको थोड़ा वेदर द ऑडियंस विल और इफ समबडी वॉचेस फ्रॉम आउटसाइड की वो रेसिज्म कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। पर तेरे को याद है ट्रेवर नोआ ने सेम चीज बोली थी। ट्रेवर नोआ सेड कि अफ्रीका वन द वर्ल्ड कप, हाँ हाँ हाँ, वो मतलब है इट ना? वाज कंसिडर्ड रेसिस्ट एक्चुअली। मतलब पर ही सेड इट। इट वाज, या इट तो वाज, नो पर ही ट्रेवर सेड नोआ इट। का, पर ब्लैक पीपल डिडंट क्रिटिसाइज ट्रेवर नोआ, उन्होंने ट्रेवर नोआ को तो क्रिटिसाइज नहीं किया था हम्म। उस टाइम। मतलब मेरे को आई कैन बी अनएजुकेटेड क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, हम्म। और इंडिया में मतलब तुम किसी को ऐसा, आई डोंट वांट टू से कि मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बोल के भी तुम उसको डिग्रेड कर सकते हो, हम्म। वैसा है ना? आई डोंट वांट टू से बिहार, बट ठीक है। पर तुम ऐसे उसको बोलते हो तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ रेसिज्म ओनली, मतलब हाँ। इंडिया के हिसाब से तो देखेगा तो, कि मतलब तमिलियंस को लोग ऐसे हम्म। मद्रासी बोलते हैं, तो दैट हम्म। इज अ रेसिज्म काइंड ऑफ अ थिंग। हम्म। ठीक है। तो वही चीज है, ट्रेवर नोआ आल्सो सेड द सेम थिंग हम्म। उसमें में। पर आई डोंट नो कि उसमें मतलब देयर कुड बी अ डिफरेंस, क्योंकि ट्रेवर नोआ ने मतलब एप्रिसिएशन कल्चर वे, वही, इट्स नॉट कि मैंने, अप्रोप्रिएट फॉर द कल्चर, मतलब इट्स हाँ नॉट। मतलब ट्रेवर नोआ ने एप्रिसिएशन वे में बोला था कि हाँ। अफ्रीका वन द वर्ल्ड कप, और एंजो डिग्रेड कर रहा है, हम्म। दैट आई अंडरस्टैंड, दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, वो वे है, लेकिन आई डोंट नो, लेट्स या मूव फॉरवर्ड। so I mean so guys let's conclude it, I mean नहीं नहीं, लेट्स टॉक मतलब थोड़ा वो स्ट्राइकर के बारे में, जस्ट वांट टू से uh, कि अभी बस मेरे को ऐसा लगता है कि चेल्सी को एक साइनिंग चाहिए। दे नीड अ वन साइनिंग ओनली, मेरे को नहीं लगता कि दे नीड मच एल्स, mm, क्योंकि अगर तू स्टार्टिंग 11 देखेगा कि गोलकीपर जो अभी विलारियल वाला आ गया जॉर्जियनसन, ठीक है, तो फुल बैक्स हमारे पास अच्छे हैं, यू नो दैट, ठीक है। राइट बैक है रीस जेम्स मालो गुस्टो, लेफ्ट बैक है कुकुरेला, और एक देखो वो बंदा याद है वेगा करके एक बंदा साइन किया है हमने 15 मिलियन में रेंस से, ठीक mm, है। तो वो हमारे बैकअप ऑप्शन है अगर चिलवेल चला गया तो। वी हैव अ मिडफील्ड ऑफ एंजो काइसेडो लाविया, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑप्शंस भी हैं कि कार्नी चुकुमे का इज अ ऑप्शन। वी हैव उसका वो ऑप्शन है ड्रूसबेरी हॉल, वो कॉनर गैलागर विद द टेक, बेसिकली विद द टेक्निकल स्किल्स। ड्रूसबेरी हॉल, देखो ड्रूसबेरी हॉल कैसा लगता है वैसे? decent enough है, decent enough है। मतलब इज ही डिसेंट एनफ टू प्ले इन अ टॉप 4 टीम? I think not in a top 4 team, I think he's the sub type player है मेरे हिसाब से, top 4 में कम से कम तो he's a मतलब sub। स्क्वाड प्लेयर कुड बी ही हाँ इज। मतलब स्क्वाड टाइप प्लेयर है, बट हाँ। आई थिंक इनके पास और पोटेंशियल है, बट, आई थिंक हाँ जिस और, हिसाब से उनको वो कंस्ट्रक्ट हाँ करना है, राइट? हाँ, तो उस मैं हिसाब तेरे से ही इज अ को मैं परफेक्ट अगर, पार्ट ऑफ दी। मैं तेरे को एक बार चेल्सी 11 बता रहा हूँ कि कीपर जॉर्जनसन, ठीक है, कि हाउ वुड यू रेट दिस 11, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं टोसन और उसको खिलाता हूँ कोलविल को एज अ सेंटर बैक, ठीक है, और फुल बैक्स यू नो, ठीक है, विल हैव अ मिडफील्ड ऑफ लाविया, एंजो एंड काइसेडो, इफ वी हैव अ मिडफील्ड ऑफ दीस थ्री, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट विंगर एनकुकू, राइट विंगर पाल्मर, ठीक है, एंड वी कुड हैव अ स्ट्राइकर ऑफ निकोलस जैक्सन, और वी साइन अ वेरी गुड स्ट्राइकर लाइक टोनी और ब्रो ओस्मान ओशिमन इज लेफ्ट। कमिंग ऑलमोस्ट ब्रो।
पर वो मेरे को लगता ही नहीं है कि नापोली भाई ने वो ऐसे आ लोन गया पे तो क्यों। तुम्हारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें अच्छा मतलब हाई क्वालिटी स्टफ करना है, मतलब ही हाँ, इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स, ही इज बीन रेटेड एज वन ऑफ द, रिसेंटली ही इज बीन पर वन ऑफ द रेटेड। मैंने उसका नापोली मैचेस तो नहीं, बट आई हैव सीन एफकॉन, एफकॉन में ही वाज एब्सोल्यूट ड्रॉस एफकॉन वो। में देखा है उसने बारसा के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म किया था नपोली में, बट मतलब ही इज अ डिसेंट इनफ प्लेयर, ही विल गेट यू गोल्स आई थिंक, ही इज बेटर देन एटलीस्ट निकोलस जैक्सन व्हाट यू हैव एटलीस्ट। बट ही इज नॉट अ बेटर फुटबॉलर देन निकोलस जैक्सन, ही कैन बी अ गुड आई स्ट्राइकर डोंट देन थिंक निकोलस निकोलस। जैक्सन हैज एनी एबिलिटी एक्सेप्ट नो ड्रिबलिंग, नो, उसके हाँ पास कुछ भी ड्रिबलिंग एबिलिटी ड्रिबलिंग नहीं है, उसके पास वो भगोड़ा है बस, ही हैज इमेंस स्पेस बट ही हैज नो क्लोज हाँ, कंट्रोल, ही पर इज उसने नो सलीबा को फुटबॉलिंग तो ब्रेन्स, मतलब वो सलीबा बंदा को पेला था टैप इन उसमें के एक लिए बार। खड़ा नहीं रह सकता है, ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, मतलब हाँ ही वही तो, डजंट नो उसका द पोजीशनल पोजीशनिंग गंदा है, अवेयरनेस। उसका पोजीशनिंग अच्छा नहीं है, और उसका हम्म मूवमेंट भी अच्छा नहीं है निकोलस हम्म जैक्सन का, दैट आई, मतलब वो तो 20-21 साल का ही तो, 21-22 साल का, हम्म तो ही विल लर्न दोस थिंग्स वैसे। पर लेकिन जो रॉ एट्रीब्यूट्स हैं उसके मेरे हिसाब से ओसिमेन से थोड़े बेटर है, आई फिनिशिंग थिंक छोड़ के। I mean, yeah, I mean, you can say that, but I think, I mean, if you're signing Oshiman, I think he's going to be a beast in your signs. But तो हाउ मेरे वुड यू हिसाब से रेट, Chelsea, हाउ वुड यू रेट दिस फ्रंट थ्री ऑफ see, एनकुकू, ओसिमेन, पाल्मर? because it has not yet happened yet, right? You can't rate No. it now because, but I would say, I think Chelsea are going to score goals, that is for sure. But you guys are also going to concede more goals. I don't So, trust. because your defense is not good enough, I think it's not even a top four defense. मतलब सेंटर ट्रॉफी बैक्स आर टीम के नॉट लिए गुड, खेल सकते हैं नो सेंटर बैक्स। डिफेंस इज डिफेंस, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फुल बैक्स हमारे पास टॉप क्वालिटी है दोनों। मतलब full back बस again, it's like again you guys have a good full back. It's basically you guys concede a lot of goals, right? That is the only problem, which तो I वही think कि it's going to be सेंटर a बैक्स problem. कुड बी इशू फॉर Center अस। backs could be a also issue, and also goalkeeper could be an issue, and also हम्म, I mean the connection between your, because it's not tried out yet. That's what I'm saying. It's not tried out because Pamal अभी तक आया नहीं है. Maybe he वो आता है वो एकदम से embed हो सकता है because he's already played in with this manager, हम्म, but it's मतलब हाउ अकस्टम्ड यू आर विद द प्लेयर्स, राइट? पार्टनरशिप बिल्ड करना होता है ना। अभी हम्म। लाविया एक नया वाला बंदा आ गया, सो ही हैज टू बिल्ड हिज पार्टनरशिप विद विद काइसेडो एंड काइसेडो, एंजो। तो मतलब मे बी यू स्ट्रगलिंग इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन, बट आई मे बी। थिंक दिस फ्रंट सिक्स ऑफ एंजो, काइसेडो, लाविया, आई थिंक इट्स एन एक्साइटिंग बंच, एंड इट्स एन एक्साइटिंग बंच, मैं बोल रहा हूँ टॉप कि फोर फॉर श्योर। फ्रंट सिक्स ऑफ एंजो, काइसेडो, लाविया, हम्म, एंड ये एनकुकू, पाल्मर एंड ओसिमन इफ ही कम्स, या ठीक है, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द गुड, मतलब या वन ऑफ द बेटर ब्रो फ्रंट सिक्स। आराम से टॉप फोर वाला ये हाँ, क्लब, टॉप थ्री मतलब टॉप फोर वाला है ये फ्रंट अटैकिंग सिक्स, एबिलिटी वाला आराम से तो है। लिवरपूल से तो बेटर है। लिवरपूल से तो बेटर है, काफी टीम से बेटर है, इवन हाँ, स्पर्स से बेटर है, स्पर्स से तो बेटर है, इस स्पर्स से पर्टिकुलर बेटर है, मिडफील्ड का है। लिवरपूल से बेटर है, अस्टन विला से बेटर है। हाँ, आई थिंक यू आई मीन आई थिंक यू थर्ड कैन, बेस्ट तो बोल सकता है प्रॉब्ली। आई थिंक इफ यू सॉर्ट योर डिफेंस आउट यू कैन इजीली चैलेंज फॉर एटलीस्ट टॉप हाँ, फोर, मतलब एक compete थियागो कर सिल्वा सकते हो। चाहिए, मतलब 32 साल का, हाँ दैट्स व्हाट वी नीड। एग्जैक्टली, बिकॉज तुम्हारे पास इतने इमेच्योर प्लेयर्स है ना, हाँ। छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। आई थिंक हम्म, द प्रॉब्लम विद द छोटे छोटे प्लेयर्स इज दे आर नॉट कंसिस्टेंट, सो हम्म, वो चीज़ लाना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इंजरी इज अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस, एंड यू हैव टू बी फिट। मतलब हाँ, पार्टनरशिप, मेरे हिसाब से पार्टनरशिप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई थिंक मरेस्का के पास काफ़ी कम टाइम रहा है बिकॉज ऑफ यूरोस। अगर यूरोस नहीं होता तो काफ़ी वो एस्टेब्लिश कर लेता। कोल पामर कुड हैव बीन अवेलेबल अर्लियर, क्योंकि बिकॉज यू वांट योर टीम टू बिल्ड अराउंड कोल पामर, हम्म, राइट? और कोल पामर हम्म, है नहीं। एंड ऑल्सो एंजो फर्नांडिस भी अभी आया है, राइट, हम्म, रिसेंटली। And also these two are the players who you think they should build your team around, right? And हम्म। so that is why I think they are a little bit slow. But apart from that, I think Chelsea this season is कुड बी डार्क again could हॉर्स। be a dark horse or could be an exciting team to watch. हम्म। But again, they will be conceding a lot of goals. हाँ, पर मैं इंजरीज के बारे में बस ये चीज बोलूंगा कि पॉच जैसा हम भाग नहीं रहे हैं अब, ठीक है। Hmm. काइसेडो ने भी सेम चीज बोला, काइसेडो किसका इंटरव्यू लिया था वहां पे कोपा Hmm. अमेरिका में, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया कि हाँ भाई, पॉच तो भगा रहा था, वो बस भगा रहा था, वो बस भगा रहा था। काइसेडो सेड दिस कि ब्राइटन में हम क्या बहुत कॉम्पैक्ट खेल रहे थे, Hmm. ठीक है, तो इसलिए मेरे को ज्यादा भागना नहीं पड़ रहा था, और मैं आई वाज गुड, क्योंकि ऑन द बॉल काइसेडो इज गुड, ठीक है। तो वो बोल रहा कि बस पॉच बस भगा रहा था, तो मैं बोलूंगा इस सीजन इंजरीज होने के चांसेस कुड बी लेस देन लास्ट सीजन, Yeah. तो वी कैन एक्सपेक्ट फ्यू प्लेयर्स टू रिमेन फिट दिस सीजन, Yeah. लाइक एनकुकू एंड रीस जेम्स। फोफाना का मैं स्टिल नहीं बोलूंगा, क्योंकि फोफाना 2 साल से नहीं खेला है, तो Yeah. उसको मैच शार्पनेस आने में जो 2021 का फोफाना है, जिसने हमें एफए का फाइनल हराया था, Hmm. तो वो फाइनल हराने वाला फोफाना में टाइम है अभी बहुत ज्यादा। Yeah, I think it's been या an exciting pre-season discussion with you, Pal. Again, I think
I think exciting team to see is again Arsenal and Chelsea, I would say, and rest all I think Liverpool, they have no things to lose, and again City. I think they are going to be again a good enough contenders for Arsenal. I think it's again going to be a two race horse between Arsenal and City, of course, but I would assume I think Chelsea, they have a good crop of team, and also Tottenham has also, they have also a decent enough team. Maybe Ange had some enough time to play. नहीं पर उनको साइनिंग्स चाहिए उनको भी साइनिंग्स चाहिए, उन्होंने भी नहीं किया है काफी. आर्ची ग्रे उन्होंने एक साइन किया, कौन है? I think they have signed some youngsters, right? आर्ची ग्रे. So I think let's conclude our podcast. I think it's been an exciting podcast again, talking with you, Paul. I think time ऐसे जाता है हमारे podcast में, पता ही नहीं चलता है. I had to leave early for some other work, पर पता ही नहीं चला कि वो work का पता नहीं, मेरा तो 6-7 मिस कॉल्स आ गए होंगे. But that is how football is, and we are passionistas of football, and we would like to talk. We want to play football as well, and we play football as well. So that is how it is. एंड एक हॉनरेबल मेंशन करना चाहता हूँ, मेरे को एक गिफ्ट मिला है दैट वी रीच्ड 300 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम समवन स्पेशल, एंड इट्स अ डिसेंट एनफ प्लैक, आर्सेनल प्लैक है ये, और काफी अच्छा प्लैक है. थैंक्स फॉर गिफ्टिंग. आई हैव आल्सो अ हजार्ड जर्सी नाउ इन द मिल बैकग्राउंड. गया है. तो आई थिंक हम लोग जब ग्रो हो ही रहे हैं तो वी विल गेट डिसेंट एनफ गिफ्ट्स फ्रॉम फैंस भी मिलेंगे कभी साथ में, कभी अपने जो क्लोज्ड वंस हैं वो भी देंगे. बट please like and share and subscribe. I think YouTube is recommending us to a lot of people, but people are watching. Thanks for watching us anyway, but please subscribe to our podcast as well. I think हमारा जो community है वो हम लोग काफ़ी बड़ा community build करना चाहते हैं, and it's going to be an open community, तो ताकि सारे opinions को हम लोग appreciate करते हैं, और सारे opinion को उसको debate की तरह लेके हम लोग भी एक valid point बोलेंगे. We are not here to abuse each other, right? वी आर नॉट कट ऑफ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग एक बोल रहे हैं. तो रोहन भी इसलिए ही वांट्स टू कम अगेन, एंड निखिल मेरा, दैट्स व्हाई ही वांट्स टू कम अगेन. सो वी डोंट वांट टू क्रिएट दिस वायरल मूवमेंट्स बाय बैशिंग प्लेयर्स, राइट? बैशिंग ओपोनेंट्स, मतलब ऐसे नहीं कि हेट कमेंट्स डाल के हम लोग ऐसे वायरल नहीं जाना चाहते हैं. वी वांट टू स्प्रेड लव एंड इक्वालिटी एज वेल. तो यही है हमारा पॉडकास्ट जो है इक्वालिटी सेंस की सब एक मतलब यू हैव टू बी क्या हैप्पी, राइट, इन डूइंग इट, एंड वी आर हैप्पी इन डूइंग दिस, एंड होपफुली you are also happy in listening to our shit. And Paul, anything? Yeah, and viewers, we got our first 1K views video. So the Nikhil Mehra video that we did, it crossed around 1100 views it is now. So first time we have seen alphabet in our numbers in our YouTube numbers. So guys, please watch us, please comment us, it will grow us. मतलब ये YouTube algorithm को support करता है. If you like us and if you comment on our video, it will help us in our YouTube algorithm. And please subscribe to the channel if you like the video. Yeah. So this is me, Ranga, signing off. This is Paul signing.